matters is try. Well, it would be good, right? Now that there's no chance for ever are you honestly? Yes. It's serious. You care about people. You follow your heart. There's no problems. So you're saying, I'm sure you give up on it. Stay in the race. मानता तो Hi, Dr. Bhutia. Good evening. Good to see you. वो स्पीकर तुम्हारे पास है क्या? Please unmute yourself. Everybody, please mute yourself. It's a request. Everybody, please keep yourselves on mute. unmute him. Only if you have to speak something, please unmute yourself. Someone is saying, so someone is speaking. कौन कर रहा है वो पता नहीं, वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते उसमें ऑप्शन। डॉक्टर साहब प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर दीजिए। Done now? Yes sir. Okay, so we start our meeting now. A Dr. very Bhutia, good evening. Hello, good evening. How are you? Okay, sir, we start. A very good evening to all the distinguished guests present with us today. Innerville Club of Siliguri, Uttarayan Aura heartily welcomes each and everyone to the seminar Social Stigma and COVID-19. आप सभी का यहाँ हमारा तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ आज डॉक्टर पीडी भूटिया, डॉक्टर प्रेम दौरजी भूटिया है। He is the recipient of गंगा रत्न एंड विशिष्ट चिकित्सा सम्मान। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब आज हैं, हमें इस पैंडेमिक के समय में कैसे अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ना है और कैसे इसके जो सोशल एक्सेप्टेंस है इसे हमें करना है, इसके बारे में सर हमें बताएंगे। सर, अब आप इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें और प्लीज हमें सही रास्ता बताएं। गुड आफ्टरनून। सब सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अच्छा, क्या मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हो जाएगा ना? इंग्लिश और हिंदी? यस सर। अच्छा, so there's enough of COVID-19, so everyone wherever you आप WhatsApp खोलेंगे, Facebook देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, there is enough lecture, so people wants the solution। अभी कभी भी आप कोई पोस्टर देते हैं, somebody says I'll be doing this program, तो 10 गालियां पड़ेगा कि क्या लेक्चर मार रहा है सर, अभी सॉल्यूशन बता। So that is one issue that everyone is wanting for the solution। इसका सॉल्यूशन क्या है? इतना लेक्चर बाजी, इतना ये, इतना अभी ये हुआ तो somebody says vaccine has come, somebody is claiming for the drugs, कोई बोलता है मेडिसिन आ गया है, कोई बोलता है ये whatever, like आयुर्वेद बोलिए या हम मेडिसिन हम लोग का, everyone is saying कि there is some solution, but इसका नजर कहाँ आ रहा है? Where is the solution? So now the new name has coined of, now is living with the COVID or a new normal. What is a new normal? So new normal आपको अभी जब तक वैक्सीन नहीं होगा, जब तक मेडिसिन पाइपलाइन में जो स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं होगा, then you have to have आपको न्यू नॉर्मल को you have to accept that। ओल्ड नॉर्मल जैसे था, हम लोग एक साथ मिलते थे, we used to have party, we used to go to market and all those days are old normal, those days are gone now। तो उसको लेके डिपेंड भी नहीं करना है। now we have to think new normal। New normal like if I'm going market, मैं मास्क पहना हूँ, if I go to doctor's chamber, मैं डॉक्टर को अपॉइंटमेंट पहले से करूंगा। even doctors are examining from back से फ्रंट में स्टेट तो रखता था, अभी नहीं, पीछे से स्टेट तो रख रहा है। so there are all, everything is now new normal for फ्लाइट में जा रहे हैं, आपको अलग से नॉर्म्स है। so these are all new normals for the time being, like till the vaccine is available or some drugs is available। so एक तो न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने में we are finding a very difficult कि कैसे इसको हम लोग अमल करेंगे। that's why people are literally after the police people are literally after कि आप लोग चेस कर रहे हैं, आप मास्क पहनो, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। the celebrities are coming up with hand washing कैसे करना है। so literally hammering the brain कि आप ऐसे न्यू नॉर्मल को you have to accept that।
इज वन वे कि आपको न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके अपना शरीर अपना जीवन का साथ अमल कर लो. दैट इज वन इशू व्हिच इज आई थिंक स्लोली पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट, बिकॉज इनिशियली टोटली रिलक्टेंट था, ये कैसे होगा, कैसे मास्क पहन के बाहर निकलेंगे, कैसे हम लोग एवरी टाइम सैनिटाइजर लेके चलेंगे. सो दोज आर द इश्यूज, बट नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट, एज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग. अब नेक्स्ट ये हुआ कि लिविंग विद द कोविड. अब बांचेंगे कैसे कोविड के साथ, कैसे जीना है हमको. तो ये तो न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करना, दिस इज वन मंत्र है, यू कैन लिव विद द, बट अब हाउ टू लिव विद द कोविड. सो अनलॉक 1 अनलॉक 2 दो फेज शुरू हुआ. पीपल स्टार्टेड गोइंग टू मार्केट प्लेसेस. तो इनिशियली क्या हुआ, द केसेस जितना नंबर था वो जो डबलिंग टाइम या वो बढ़ते गया. अभी अब सिलीगुड़ी में लाइक इफ यू सी, हम लोग का दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सबसे लेट में हुआ. इनिशियल वी थॉट कि नहीं हम लोग का सिलीगुड़ी में नहीं आएगा, वी आर पहाड़ का पास में है, वी हैव नो केस. सो केसेस वर देयर ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में था, तो सिलीगुड़ी में नहीं था. क्योंकि मैं तो 24 जनवरी से आई हैव बीन कैंपेनिंग की सोशल सिलीगुड़ी में भी आएगा ये वो. तो इनिशियली सो आई हैव बीन डूइंग ऑल दोस कैंप्स यानी अवेयरनेस कैंप. बट अभी क्या हुआ, लेटली सिलीगुड़ी में आ गया. नाउ सिलीगुड़ी इज इन पीक. अभी सिलीगुड़ी में जैसे आज से 2-15 दिन 22 दिन आगे जितना केस था, अभी रिसेंटली लास्ट वीक में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है. ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा एक पीक में, एक प्लेट्यू में आके एक फ्लैट हुआ है अभी ये कुछ दिन में. तो क्या है, अभी नाउ इश्यूज 2-3 है. वन इज आप कोविड, अगर नाउ यू आर डायग्नोज्ड विद द कोविड और यू हैव अ सिम्टम्स ऑफ कोविड. एक चीज होता है, पीपल सेज कि इफ समबडी इज वर्किंग विथ यू या यू आर, आपको एक अलग सा एक फीवर आ गया, आपको सपोज फीवर आ गया, हेडेक हो गया, मसल पेन हो गया, आपका टेस्ट चला गया एंड यू आर स्मेल चला गया, तो यू फील कि नहीं मुझे कोविड तो नहीं हुआ है. देन यू से ठीक है मैं आइसोलेट करता हूँ. दिस इज कॉमनेस्ट एकदम वर्ड एवरीवन इज यूजिंग दैट, आइसोलेशन. मैंने खुद को आइसोलेट किया हूँ. आइसोलेट करना और ट्रीटमेंट करना इज अ डिफरेंट इशू. आइसोलेट विल जस्ट प्रिवेंट कि आप जो इन्फेक्शन आप में होने का संभावना है वो यू आर नॉट गोइंग टू स्प्रेड दैट टू अदर पीपल. कि आप किसी को बोला भाई तुम आइसोलेट कर लो, तुम अलग से रूम में रहो, कुछ भी करो, और दूसरा somebody says कि सर आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, मैं खुद को फैमिली से आइसोलेट किया हूँ. आइसोलेट करके रूम का अंदर में क्या करेंगे आप? आइसोलेट करना तो सॉल्यूशन है. मैं आइसोलेट किया हूँ, इट्स इजी टू से कि मैं आइसोलेट किया हूँ खुद को, बट आइसोलेट करने के बाद व्हाट यू विल डू, क्या क्या सिम्टम्स आने से आपको अलार्मिंग लगेगा, क्या व्हाट आर द सिम्टम्स व्हिच यू नीड टू, आपको इमीडिएटली आपको जल्द में आपको पकड़ना पड़ेगा. देन यू हैव टू एक्ट ऑन दैट. नाउ दो तरह, एक फीवर है, एक लो ग्रेड फीवर आ रहा है पेशेंट को कम्युनिटी में, एवरीवन इज वेरिंग फियर है कि नहीं मेरा कोविड तो नहीं हुआ. अगर कुछ सिम्टम्स है, माने दिस इज अ न्यू वायरस, वो कोई देयर इज नो डॉगमेटिक रूल कि आपको ये सिम्टम्स होने से कोविड है, ये नहीं होने से कोविड नहीं है. एवरीवन, एवरी डिजीज, एवरी पेशेंट इज नाउ शुड थिंक इन द लाइन ऑफ कोविड अनलेस प्रूव अदरवाइज. क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका डिलीवरी हो गया, डिलीवरी के बाद देखा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि शी वाज असिम्प्टोमेटिक, कुछ पता नहीं था. सो एनीवन हुएवर इट इज शुड बी ट्रीटेड इन द लाइन ऑफ कोविड अनलेस प्रूव अदरवाइज. क्योंकि सिम्टम्स होने से ही कोविड है, सिम्टम्स नहीं होने से कोविड नहीं है. इनिशियली सिम्टम्स वाज वुहान सिटी में तो था, सिम्टम्स वाज कफ, ब्रेथलेसनेस, फीवर, वीकनेस भी नहीं था, कफ, ब्रेथलेसनेस, फीवर. उसके बाद फिर यूरोप पहुंचते पहुंचते वीकनेस ऐड हुआ, फिर मसल पेन हुआ, फिर कावासाकी टाइप ऑफ डिजीज बोल के स्किन, बच्चों को लोअर लिम्ब में कुछ छोटा छोटा स्किन लीजन निकलने लग गया. अब हमारे यहाँ इंडिया में आते आते स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया. अभी हेडेक इज द ओनली सिम्टम्स. हेडेक सिर्फ लेकर भी आ सकता है, और यंग जेंटलमैन, यंग पर्सन हार्ट अटैक लेके आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक लेके आ सकता है. सो देयर इज अ डिफरेंट इशू. सो सिंपल, अगर फीवर आ रहा है व्हाट यू विल डू इफ यू हैव अ फीवर, जस्ट फीवर, घर में फीवर आ रहा है, नथिंग एल्स, और आपको बॉडी एक है, वीकनेस है, यू आइसोलेट योरसेल्फ इन अ रूम एंड आपको सिर्फ 2-3 चीज ख्याल करना है. यू शुडंट मिक्स विद द रेस्ट ऑफ द फैमिली. आप रूम का अंदर में कोई पॉजिटिव यू वॉच. अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे बीमार उमार पड़ लेते हैं तो आस्था चैनल चला लेते हैं, चला के ये सब आस्था चैनल में जो ज्ञानवान होता है वो देखने लगते हैं. थोड़ा सा और भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करे, भाई तुम जिंदगी में क्या रखे हो, लाइफ में क्या है, तुम आए हो जाओगे, ऐसी इस टाइप का. तो आस्था चैनल में जो कुछ तो पॉजिटिव है, पर थोड़ा सा खुद को ये हो. सो यू हैव टू कीप योर जो एनर्जी लेवल है थोड़ा सा बूस्ट
करके रखना है, so that you see good channels, ये सब मूवी वूवी देखो रूम में। नंबर 1 एनर्जी को ठीक रखना है, साइकोलॉजिकली बूस्ट करना है। टेस्ट का बाद में छोड़ो, टेस्ट डोंट रन आफ्टर द टेस्ट कि डे 1 में पीपल आर सेइंग आई एम ट्रीटिंग पेशेंट फॉर लास्ट 15-20 डेज, सब हर कोई बोलता है सर मैं कोविड टेस्ट कर रहा हूँ। कोविड का नियम है 5 दिन का पहले टेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। लेट फीवर 5 दिन आने, फीवर आने से जस्ट हैव पैरासिटामोल, पैरासिटामोल खाइए, हैव पैरासिटामोल। एट द मोस्ट आपका गला दर्द हो रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन, नाक से पानी गिर रहा है तो लिवोसिट्रिजिन, ये सब खा के जस्ट 5 डेज वेट। 5 डेज तक हाइड्रेट योरसेल्फ एडिक्वेटली, पानी ज्यादा करके पीजिए, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन मेंटेन कीजिए। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोर जितना है, फ्लोर को आप 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 10 लीटर पानी में 1 लीटर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन मिला के आपको 1:10 रेशियो बना के यू कैन क्लीन योर टेबल, एवरीथिंग क्लीन कर सकते हैं। देन न्यूट्रिशन के लिए गुड हाई प्रोटीन डाइट लेना है। देखिए वेट फॉर 10 डेज, ये 5 दिन तक व्हाट यू विल ऑब्जर्व। एक नंबर टेम्परेचर तो आपको है ही, टेम्परेचर में पैरासिटामोल राउंड द क्लॉक खा रहे हैं। एक दो चीज देखना है, आपको कोई अल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है कि नहीं, आप थोड़ा सा दिमागी हालत थोड़ा इधर उधर हो रहा है कि नहीं, यू आर मेमोरी कुछ हो रहा है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 आपका वेरी इंपॉर्टेंट पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, ये मिडिल फिंगर में देखना है, क्योंकि मिडिल फिंगर हैज 2 आर्टरी, एक रेडियल आर्टरी, एक अल्टरनेट आर्टरी, 2 आर्टरी का यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है, इसलिए इससे आपको अच्छा रिपोर्ट देगा। तो इसमें आपको पल्स ऑक्सीमीटर में देखना है कि सैचुरेशन 94 का नीचे जा रहा है कि नहीं, कोविड हो या ना हो। फीवर में, अभी का दिन का फीवर में, हैड इट बीन पहले का दिन का फीवर होने से बता नहीं था, फीवर इज फीवर, बट नाउ फीवर के लिए ये फीवर डायरेक्ट रिलेटेड टू लंग्स, क्योंकि कोविड इफेक्ट्स लंग्स फर्स्ट। और आपको अगर यू हैव टू चेक कि 94 का नीचे सैचुरेशन जा रहा है, पल्स रेट 120 का ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा अलार्मिंग है, देन यू शुड सी डॉक्टर और कॉल डॉक्टर। देखना जाना तो नहीं है, डॉक्टर को फोन करो, क्योंकि इफ अगर आपको बुखार फीवर लेके डॉक्टर के चेंबर में जाएंगे, यू विल बी स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। सो यू मेक अ कॉल टू द डॉक्टर, डॉक्टर आई एम हैविंग दिस सिम्पटम्स, व्हाट शुड आई डू। ये भी एक न्यू नॉर्मल है कि पहले क्या होता था, बीमार होने के बाद डॉक्टर के चेंबर के सामने जाता था, वी यूज्ड टू वेट डॉक्टर का चेंबर के सामने, एंड डॉक्टर का चेंबर में एंटर करके वी यूज्ड टू से ये हुआ है। नाउ दैट इज दो डेज आर गॉन। न्यू नॉर्मल इज नाउ यू मेक अ कॉल टू डॉक्टर, मेरा ये सिम्पटम्स है, डॉक्टर जो सजेस्ट करता है वो करना है, यू शुडंट गो that way you can save rest of the people. One can infect 100 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, और एक आदमी अगर ऐसे आइसोलेट करता है तो 100 आदमी को बचा सकते हैं। देन ये हो गया सैचुरेशन, यू आर सीइंग दैट। उसका बाद सैचुरेशन वगैरह देख के ठीक है, 5th डे में आपका फीवर ना, 5th डे में ना यू फील मेरा क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था, व्हाट इज दिस, देन यू चेक फॉर ये अभी जो फैसिलिटीज अभी है, लाइक होम कलेक्शन है, व्हाटएवर यू कैन मेक एन अरेंजमेंट, वो कर लिया। करने के बाद अब रिजल्ट आएगा, यू विल फील अ फियर कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा क्या। अब ये रिजल्ट के लिए रिजल्ट आ गया, नाउ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज सेम, रिजल्ट आए या ना आए। अगर ओल्ड एज है, जिसको डायबिटीज है, जिसको प्रेशर है, जो एज 55 के ऊपर में, दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, किडनी ट्रांसप्लांट, वो कैटेगरी को थोड़ा सा सावधानी है। वो लोग का अगर सैचुरेशन ठीक है, पल्स ठीक है, पॉजिटिव आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल मेडिसिन से ठीक होगा। पर ये ग्रुप में अगर सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, देन यू हैव टू एडमिट दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट। पर अदर नॉर्मल जो है, नॉर्मल लोग, नॉर्मल जो मेडिसिन अभी फैविपिराविर आया है, अभी जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, आइबरमेक्टिन, ये मिला के डॉक्टर्स विल डिसाइड कि आपको क्या देना है, द ट्रीटिंग डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको क्या देना है या नहीं भी देना है, तो ये देख के आपको इलाज करेगा। सो पॉजिटिव आने से इफ यू हैव अ कोमॉर्बिडिटीज, थोड़ा सा सावधानी से रहना है। कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो ये है। अब नेक्स्ट इश्यू होता है, सर कोमॉर्बिडिटीज है पर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, देयर इज नो बेड इन द हॉस्पिटल। इसमें मैंने अभी 15-20 दिन में ऑलमोस्ट आई हैव गॉट 127 पेशेंट, 130 पेशेंट जैसा मैं घर से इलाज कर रहा हूँ, घर में बैठ के मोबाइल में ऐसे इस तरह से ये करके। निकिता नोज वेरी वेल एंड मेनी ऑफ माय पेशेंट्स आर आल्सो देयर। मैं व्हाट्सएप में कॉल कर रहा हूँ। क्या देखा कि आपको गाड़ी ब्रेक फेल होने का बाद ब्रेक वेल लगाने से फायदा नहीं है। जब भी देखता है ओल्ड एज घर में आदमी है, कोई प्रेशर वाला है, शुगर है वाला है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर लीजिए घर में, कीप दैट ऑक्सीजन सिलेंडर। ऐसे नहीं कि अरे ऑक्सीजन लग रहा है क्या ऐसा हो गया, ऐसे नहीं है। फॉर ऑक्सीजन इज अ थेरापी नाउ, ऑक्सीजन इज अ ट्रीटमेंट नाउ। ऑक्सीजन थेरापी से क्या होगा, वो टिश्यू इंजुरी, टिश्यू डैमेज टू द लंग्स कम होगा। और ऑक्सीजन कैसे लेंगे, ऐसे बैठ के एक बार लेना है और नीचे पेट का बल लेट के लेना है। देखिएगा बैठ के जब ऑक्सीजन ले रहा है 94 है,
ऐसे ऊपर होके लेट के जब ऑक्सीजन ले रहा है 97 है, दैट मींस हम लोग का लंग्स का जो पीछे में एल्वियोलाई है वो सब खुल जाता है। तो दैट वाज आई वाज सेइंग कि इवन नॉर्मल पीपल कोविड का टाइम में एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको पेट का बल लेट के सोना है एवरी डे इन डे में 2 बार 3 बार पेट का बल लेट के सोना है, सो दैट आपका लंग्स का पीछे का जो एल्वियोलाई है वो खुल जाए। बिकॉज नॉर्मल लाइफ में हम लोग का सिर्फ लंग्स का ये ऊपर पार्ट इतना पार्ट ही यूज होता है, क्योंकि नीचे इधर हार्ट है, इधर पूरा ब्लड रहता है, हार्ट से जो ब्लड आया हुआ नीचे रहता है और ये पार्ट यूज नहीं होता है। तो अभी क्या है, लंग को इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पानी खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, काढ़ा पियेंगे, तो उससे तो शरीर का इम्यूनिटी, बट लंग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्मोक नहीं करना है, यू नीड टू स्लीप 6-7 आवर्स अ डे, और ऐसे ऊपर ये करके लेट के 2-3 बार सोना है दिन में, एंड 2 बार 3 बार करवट भी, यू कैन चेंज योर पोजीशन आल्सो। नेक्स्ट आपको वो जो ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है वो करना है, बट इफ यू हैव फीवर यू शुडंट डू इन फ्रंट ऑफ द पीपल, बिकॉज अगर आप कोविड पॉजिटिव है और नाक से जोर जोर से सांस लेके छोड़ रहे हैं, that will create aerosols, that will create fomites, that will create a droplet, वो पूरा घर में फैल जाएगा, वो करना है। और आप यू हैव अ रूम, एसी रूम है तो आप एसी चला सकते हैं, एसी 24 से 29 तक पे रख के चलाना है, एंड यू हैव टू ओपन स्मॉल विंडो। पहले डेज था कि एसी चलाते हम लोग, वी हैव टू क्लोज ऑल द विंडोज, खोल दो, सब बंद कर दो, नहीं तो एसी खराब हो जाएगा ना। अब एसी खराब होने दीजिए, पर इतना छोटा खुला रख के 24 to 29 में आप चला सकते हैं, so that एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, वो लगा सकते हैं। ऐसे पसीना पसीना होके रहने से और भी खराब है। बट इफ यू हैव अ सेंट्रल एसी एट होम, वो ठीक नहीं है, सेंट्रल एसी नहीं चलाना है, दैट विल स्प्रेड इन्फेक्शन पूरा घर में। सो यू हैव, इफ यू हैव अ सिंगल एसी वेंट यू कैन यूज दैट। ये हो गया दिस थिंग। और नेक्स्ट अब ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन आप घर में ऑक्सीजन थेरापी देखिए, अर्लीस्ट ये सब कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, उसको अर्लीस्ट अगर आप ऑक्सीजन दे देते हैं घर में, हॉस्पिटल बेड नहीं मिला, यहाँ वहाँ दौड़ने का वजह, गेट वन ऑक्सीजन सिलेंडर एट होम और ऑक्सीजनेटर, स्टार्ट गिविंग ऑक्सीजन, देखिए 2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। और प्राइमरी जो मेडिसिन है, शुगर है, ये सब यू शुडंट मिस दैट। और ग्लूकोमीटर से यू हैव टू चेक योर ब्लड शुगर एवरी नाउ एंड देन, देखने से क्या होगा, उससे आपको यू कैन मॉनिटर द ब्लड शुगर आल्सो। सो दिस इज व्हाट फीवर घर में कैन बी मैनेज, बट हाँ कुछ कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे 1 or 2% बहुत खराब हो जाता है, दैट नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। पर क्राइसिस इतना है कि हॉस्पिटल बेड मिलना मुश्किल हो जा रहा है, तो स्टिल अर्ली डिटेक्शन होके अर्ली अगर आप इंस्टीट्यूट करते हैं तो ठीक होगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एल्डरली जो घर में है, कीप ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर। ऐसे नहीं कि यू वेट फॉर द सैचुरेशन टू ड्रॉप डाउन टू 94 का नीचे चले जाए तब हम चलाएंगे, ऐसे नहीं। अर्लीस्ट अगर टैकी हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है, सैचुरेशन 96-95 हो रहा है, लगा दीजिए 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए, देखिए नेक्स्ट दिन शी विल फील बेटर। तो दिस इज वन थिंग, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल इशू व्हाट आई हैव कम अक्रॉस विद इन दिस 15-20 डेज। तो ये है। तो नाउ इससे नया और बोलना कोविड के विषय में तो नया बोलना कुछ नहीं है। ड्रग्स, देयर आर मेनी ड्रग्स। अभी जो नया एडमिटेड पेशेंट के लिए रेमडेसिविर आया है, टॉसिजुलम, जिसके लिए और आदमी दौड़ रहा है पूरा, वो जो कॉस्टली इंजेक्शन है, बायोलॉजिकल बोलता है, टॉक्सिजोमैब जो है, वो उससे क्या होता है, वो उससे थोड़ा सा इट्स इम्यूनोमोड्यूलेटर, वो दे देता है। बट ओरल ड्रग्स तो अभी आ गया है कि फेविपिराविर आया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन, ये सब मिला जुला के दे रहे हैं। हाउ फार पीपल आर क्लेमिंग कि काम होता है, देयर आर स्टडीज, काम हो रहा है। हाँ, और 2 चीज वेरी इंपॉर्टेंट हियर आई वुड लाइक टू से, मैंने 2 दिन पहले पोस्ट भी किया था कि देयर वर स्पेकुलेशन कि इंडियन में थोड़ा कम इफेक्ट होगा क्योंकि वी हैड टेकन बीसीजी वैक्सीनेशन। तो जो बीसीजी वैक्सीनेशन लिया है उसको प्रोटेक्शन थोड़ा होगा, और अगर कोविड होता है में तो दे हैव अ माइल्डर फॉर्म्स ऑफ कोविड होगा। उसका साथ एमएमआर जो हम लोग बच्चों में देता है, मम्स, मीजल्स, रूबेला का वैक्सीन, दैट विल आल्सो प्रोटेक्ट समथिंग। बट नाउ सबको आफ्टर द एज ऑफ 6 years, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर डिजीज, ये उस सबको एक फ्लू वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। फ्लू वैक्सीन लेके रखने से कुछ प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि फ्लू का जो वायरस है वो भी आरएनए है, ये भी आरएनए वायरस है, वो भी जेनेटिक पैटर्न, पैथोजेनेसिस फ्लू का इसी तरह से होता है, तो ये भी होता है, तो कुछ प्रोटेक्शन जरूर होगा। सो ऑल एल्डरली पीपल शुड टेक फ्लू वैक्सीन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। लेकिन सांस लेने में तकलीफ नहीं है, बोलिए घर में फीवर खांसी तो आदमी सहन कर लेता है ना, नहीं तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने से हॉस्पिटल जाना पड़ता है।
और नेक्स्ट है कि आपको नेक्स्ट आपको सर निमोनिया आप भी तो मतलब elderly- होम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, किसी का होम में है तो आप ट्रीटमेंट कर ही रहे लगाएगा पहले फोटो तो मैंने कहा रखो। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर। तो आप लोग सर तो जैसे आप लोग भी होम ट्रीटमेंट यही सब मेडिसिन दे रहे हैं क्या? हेलो जैसे सर मेरा तो एक हाँ ना अभी क्वेश्चन सेशन कर दें अंकिता निकिता should I start answer question answer हेलो Yes, sir, sir, हाँ म्यूट करना पड़ेगा आपको जो बताना था उसको है। Let him finish that, talk first of Yes, all. yes, sir. Sir, आप प्लीज अपना कंटिन्यू कीजिए। now another is like medicines. I'm talking about the medicine. There are medicines सर प्लीज अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए। यस हाँ, तो Yes, क्या है sir, कि continue. मेडिसिन आर अवेलेबल मेडिसिन तो है थोड़ा सा क्राइसिस हुआ था दोस्त बहुत सीरियस पेशेंट में दिया जाता है वो इट्स अ गेम चेंजर भी नहीं है बट देयर हैज बीन ट्रायल विद ऑल दिस मेडिसिन रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब तो उससे कुछ पेशेंट ठीक हुआ है उसके साथ लो मॉलिक्यूलर हेपारिन ये सब दिया जाता है वो है पर ऐसे कोई गेम चेंजर मेडिसिन ऐसे कुछ आया नहीं बट दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फेविपिराविर जो अभी हर कोई चिल्ला बोला रहा कि फेविफ्लू बोल के पेपर रनिंग इसका देयर आर सम इफेक्ट है बट स्टडी पता चलेगा जैसे आई हैव आल्सो जैसे आई हैव 127 to 30 पेशेंट आई हैव गिवन टू मेनी पेशेंट्स तो देखते हैं कि मुझे आफ्टर 1 मंथ मुझे पता चलेगा 14-15 दिन बाद कि कितना क्या होता है देयर स्मॉल एक डेटा भी तैयार होगा कि हाँ काम होता है so that way I can get you back after 15-20 days हाँ it really works so we need our own data कि काम होता है या नहीं but as of now मेरा 18 से 20 पेशेंट नेगेटिव हो चुका है 18 to 20 पेशेंट घर में रह के नेगेटिव हुआ है and main है it's just a thing this way it's a viral flu it will affect elderly थोड़ा सा हटके थोड़ा ज्यादा होगा younger में if you have a good immunity you will not have anything but you have to monitor yourself आपको न्यूट्रिशन मेंटेन करना है और थोड़ा सा यू हैव टू कीप योर थोड़ा सा मोरल हाई रखना है क्योंकि पहले जितना भी डिजीज आया था लाइक इवन टीबी को थाइसिस बोलता था ओल्डर एज में टीबी होने से किसी के घर में नहीं जाता था देयर वर बिग सोशल स्टिग्मा एचआईवी का तो स्टिल अभी भी है और हेपेटाइटिस बी सी में भी थोड़ा थोड़ा है अभी भी तो देयर आर सब डिजीज का तो ट्रीटमेंट नहीं है बी का भी नहीं है सी की भी नहीं है कब सब वैक्सीन अभी यू कैन जस्ट कंट्रोल दोस डिजीजेस सो ये है एक तो ये दीज आर नॉट सेल तो सोशल स्टिग्मा तो एक सोशल स्टिग्मा का विषय में थोड़ा सा आज बात करना था तो स्लाइड तो बनाया हूं पर स्लाइड बोलने से तो आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज और टाइम नहीं मिलेगा शायद निकिता व्हाट डू यू से हेलो स्लाइड अच्छा सोशल स्टिग्मा का स्लाइड देखा है स्लाइड हाँ सर हाँ स्लाइड रिमी कोথায় আছে सोशल स्टिग्मा व्हाट इज सोशल स्टिग्मा क्यों है कोई भी नया डिजीज अगर आता है host can share the content who is the host कर दिया all participants सब आप कर दिया ना यस सर अभी आप कीजिए कर दो Sir, are you able to share? नहीं हो रहा है ना हाँ like social stigma we'll discuss about the social stigma because topic was social stigma and COVID-19 can you see the screen you all Yes, are seeing sir. the screen Yes, sir. अच्छा सोशल स्टिग्मा कोई भी नया डिजीज आता है तो एक सोशल स्टिग्मा होता है देखो टीबी का साथ भी था टीबी होने से टीबी का जिसका टीबी होता था पीपल घर में नहीं जाता था किसी का घर में सो आई हैव टेकन दिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का जो सेशन था वहां से सेशन 5 में ये था तो आई हैव टेकन दैट स्लाइड फ्रॉम देयर तो इसमें एग्जैक्टली व्हाट इज सोशल स्टिग्मा
सोशल स्टिग्मा, अभी सोशल स्टिग्मा को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ रहा है सिलीगुड़ी में, बिकॉज had it been 1 month back, अभी इतना 127 पेशेंट घर में इलाज कर रहा है, अगर अभी से 1 महीना पहले होने से नहीं होता। बिकॉज जब भी कोई पेशेंट कोविड होता है तो एक न्यूज आ जाता है, उस जगह में एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है, ওখানে একটা কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে, চলো ওনাকে তুলে নিয়ে গেছে রাত্রেবেলা, পুলিশ এসে রাত্রেবেলা তুলে নিয়ে গেছে, মানে those were the language that hello hello We can hear you. Continue. हाँ, so those are the languages, because you know, they had it been 1 month back, अभी जैसे 120 70 तो मेरा ये चूंकि सिलीगुड़ी में 500 से 600 पेशेंट होगा, they have been getting treatment at home. Now the people accept कर रहे हैं, तो एक माहौल में फ्लैट में अगर एक पॉजिटिव होता था, days were there, people were literally after that house की तुम घर से निकलो, doctors were not allowed to go inside, even the health workers were beaten up, or even the you know swab जो collection करने जाता था, they use एकदम, there was a huge chaos. Now slowly people have realized, I told you about the new normal, now it's a new normal, that COVID positive होना, it's not a crime, it is not a कोई ये नहीं है. Why police is going? Because still there is some people who are, you know, who might create some problem. People police are going, and people who are going to take the, you know, patient, they are wearing a PP because to protect themselves. तो थोड़ा सा वो सीन जो है, पुलिस जाना, पीपी पहन के जाना, एक एम्बुलेंस रात को इसलिए जा रहा है क्योंकि दिन में थोड़ा सा आदमी फोटो उठा लेगा, एक प्राइवेसी को खत्म करेगा बोल के दे जनरली प्रेफर नाइट को, दे यूज्ड टू प्रेफर, तो ऐसे उठा के ले जाता था. देन दैट क्रिएटेड एक सीन, उसको वीडियो बना रहा है कोई, सोशल मीडिया में छोड़ रहा है. हेलो, यू आर लिसनिंग? आई एम ऑडिबल? Continue. We So, can hear you. yeah, so that was a issue. That was a issue with stigma, but people have started. Otherwise, abhi 127 to 130 patients are being treated at home. That wouldn't have been possible because there's definitely a social acceptance in Siliguri also. People have realized, nahi, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गवर्नमेंट का तरफ से भी ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है. अदरवाइज कोविड पॉजिटिव होते ही रात को ऐसे आके ले जाता था, उठा के बताते हैं अभी, they used to, you know, take the patient. So that way थोड़ा सा पैनिकी, and on the top of that अभी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो घर में माने हॉस्पिटल में अकोमोडेशन देने. So they are also seeing even the lots of examples in Delhi and the rest of part of the country that a mild COVID positive or a mild symptomatic to moderate symptomatic, they can be easily treated at home environment. उससे क्या होगा, होम में 2-3 चीज होगा. एक तो एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. द मोमेंट दे एंटर हॉस्पिटल, उसके बाद आदमी का पूरा एकदम सोचेगा कि दो डेज वर देयर कि मोबाइल अलाउ नहीं करता था, घर वालों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, पेशेंट चला गया तो 14 दिन में ठीक हो गया तो आ गया, नहीं तो पेशेंट बस वो कभी मुंह भी देख नहीं पाएगा. सो दोज वर द सिनेरियो कि गया अब नहीं आएगा, दिस इज लास्ट घर से निकला है. तो दोज वर द डेज. तो अभी वो नहीं हुआ. अभी क्या हुआ कि अभी गवर्नमेंट हैज गिवन, नहीं, आप घर में रहो, होम इन्वायरमेंट, घर का खाना खाओ, टीवी देखो, फैमिली का साथ जस्ट चैट करो विद मोबाइल कि यू डोंट कम आउट ऑफ द रूम बट यू कैन चैट. बट व्हेनेवर यू आर इनसाइड द रूम, अकेले होने से भी यू फील गुड, एक फील गुड बात आ जाता है. तो दैट वे देखने से देखा दिस इज अ गुड सॉल्यूशन. सो सोशल एक्सेप्टेंस हो गया है. अब सिलीगुड़ी में देखिए आपका मोहल्ले में भी कोई पॉजिटिव हुआ है, पीपल आर एक्सेप्टिंग, नहीं ठीक है अभी जरा पॉजिटिव हुआ है. ऐसा भी हुआ है पीपल आर बाइंग वेजिटेबल्स, पास वाला खरीद घर का सामने रख दे रहा है कि भाई तुम बाहर मत निकलो, तुम वेजिटेबल खाओ. सो दीज आर दी, यू नो, गुड जेस्चर कमिंग फ्रॉम द पीपल. सब्जी बाजार करके मीट चिकन खरीद के दे रहा है कि यू हैव दैट बट डोंट कम आउट ऑफ द रूम. सो बट दैट दिस स्टिग्मा को लेके देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज कि सोशल स्टिग्मा से थोड़ा सा बाहर था. बिकॉज व्हाई दिस सोशल स्टिग्मा क्यों है? सो स्टिग्मा होने से क्या होगा? what can a health worker can do? Why this is in any epidemic, it is a common for an individual to feel stressed and worried because they fear. One is डर. एक डर है जो मिली, इधर में नहीं दिखा रहे स्लाइड, ये सामने में एक डर जो है, डर सबको किल कर रहा है बिकॉज यहाँ पे फियर फैक्टर आ रहा है. एक सोशल स्टिग्मा, पीपल आर क्या है, पीपल डजंट वांट टू देयर आइडेंटिटी, डिस्क्लोज देयर रिपोर्ट. क्या
अब बीमार होने से भी क्या हो रहा है, सोशल स्टिग्मा ऐसा है कि बिकॉज सिलीगुड़ी में थोड़ा सा ज्यादा इसलिए हुआ कि बिकॉज आज पॉजिटिव नहीं हुआ, अचानक सिलीगुड़ी में देखा 100 200 300 आदमी पॉजिटिव हुआ, बिकॉज पीपल वर हाइडिंग, पीपल वर घर में छिपा रहा था डिजीज को कि नहीं हम नहीं बताएंगे, बुखार आने तो हम पास का दुकान से पैरासिटामोल खरीदेंगे, बट आई विल नॉट टेल कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। आज टेस्ट नहीं कराने की वजह से सिलीगुड़ी में अचानक इतना ज्यादा केस, एक दिन में देखा 100 केस हो गया है। नाउ दैट वाज अ थोड़ा सा स्टिग्मा है, क्योंकि अगर मेरा पॉजिटिव आ गया, मेरा घर, मुझे एक फियर फैक्टर था कि गवर्नमेंट उठा के ले जाएगा, अब मैं घर आ नहीं पाऊंगा। दूसरा ये है कि अगर मैं पॉजिटिव हुआ तो मेरा एक सोसाइटी में क्या बोलेगा, वो पॉजिटिव हुआ है, ये हुआ है, मेरा घर का, मेरा फैमिली को थोड़ा दूर दूर करेगा, पीपल विल नॉट बी एक्सेप्टिंग मी, ये फैक्टर कि इसलिए क्या सिलीगुड़ी वेल पीपल वर आल्सो नॉट डिस्क्लोजिंग कि नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे, बट नाउ पीपल हैव रियलाइज नहीं बताना, अर्ली बताना सही ठीक है, सो दैट आई कैन बी ट्रीटेड अर्ली। अभी नाउ पीपल स्टार्टेड कि रियलाइज कर लिया कि नहीं ये करना ठीक है। स्लाइड में सो आर यू द स्लाइड विजिबल है? No sir, no slide visible नहीं है, it's not visible. सो अभी फर्स्ट पेज विजिबल है अगर अच्छा, slide- so I discuss everything. Yes. The level of stigma associated with COVID-19 mainly three factors. COVID is a new disease because I told you a naya disease and there are many things are still being discovered. इसीलिए stigma है. When something is on which leads to fear, is generate हुआ है, and rumors are fake news. फेक न्यूज, ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सोशल स्टिग्मा जनरेट हुआ है। So recognizing stigma, Yeah, भैया पूरा बोलिए ना। Read. How to recognize a stigma? I told you stigma ka 3 factor. I told you those are about how to recognize a stigma. There are examples. You are in a grocery shop. There are several people who are wearing a mask. Use the store on एक कुछ बेच रहा है, पर वो बाबूलाल है, बाबूलाल को प्रॉब्लम हुआ कि उसको खांसी आने लग गया, बट ही इज ट्राइंग टू सप्रेस। दिस इज वन, क्योंकि वो खांसने से क्या होगा, वो सब आदमी चला जाएगा। नंबर 2, एक सुखराम है, has come back from the Pune where he works as a taxi driver. They stay in a joint family and you have taken his contact history as advised by your supervisor. You come to know that Sukram's family members have asked him to leave the house. This is one. Beauty parlor jo worker hai in Delhi as a housemaid. Recently she was come back and you have been told that beauty's employees have asked her to leave, he or she as she has a cold. Or Surali is a young girl of 11 years. She and her 8-year-old brother are staying with an aunt as their parents have been asked to go in for isolation. Surali aunts keep on complaining to you that the children are a big burden on the family's resources. So iska kya hai? Ab stigma. What will you feel like you are a Babulal, Rani, Sukram or Beauty? Agar aapka ye teen hota hai to kya hota hai? Babulal a simple cough, but he is too scared to cough in front of the people, but he will think that you lose the customer, chala jayega. Sukran need a family support to help him stay in isolation. If everyone takes proper precaution, the infection need not spread. That beautician has a seasonal cold, but she has been asked to live by her employer. Kaam chodo, tum nikal jao. Surali and her brother are two small children who needs to be supported, and this kind of incidents can cause mental stress even in the future. So these are the stigma. So what does the stigma do? इससे क्या होगा आपको? एक
make people hide their problem. वो स्टीम का वजह से आज सिलीगुड़ी में because people have started hiding their problem. क्या मुझे ये होगा वो होगा, निकाल देगा काम से. If I say that, people will not accept me. So this is a one thing. Well, people are hiding. Another is keeps people away from the accessing health service and seeking help. नहीं जाना चाहते because अभी देख रहा है कि there are the news of death coming in कि ये expire हो गया वो हो गया. There are not good facilities. People are not allowed to use mobile phone. The AC is not working. Food is not supplied in time. So because of that, people are say नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो एकदम dead end है. Discourages them and may at this prevent them from adopting health behavior. अब बहुत सा health behavior है कि मैं हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, दो रेस्पिरेटरी एटिकेट है उसको फॉलो करना है. सो नाउ दे से कि नहीं. सो व्हाट कैन बी sensitize people and help them to understand that it is a simple. So there are things I told you already. Sensitize the people and help them to understand that it is a simple infection and 80% of the cases are mild cases. So 80% cases are mild cases. COVID testing can happen to anybody. Speak to people are available. Listen to the how they feel. क्योंकि पहले बोलता था हम लोग को नहीं होगा because our big B को हो सकता है, ऐश्वर्या राय बच्चन को हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं होगा. So there is nothing. It will not. किसी को भी हो सकता है. So advise people to engage in relaxing activities like indoor games, reading books. Because I told you many times, घर में जब है तो you have to engage yourself in different household activities. You have to like you make a small group of friends like WhatsApp group. You chat not related to COVID. एक अच्छा कोई केक बनाया, खाना बनाया. You share with few good things. But अभी क्या होता है, कोविड का कोई ग्रुप बनता है तो वहाँ पे किसी का डेथ हुआ उसका फोटो आता है, कोई क्या हुआ है, रिजल्ट पॉजिटिव का रिजल्ट, ये वो that way that will create negative environment. So you make a small WhatsApp group. You can make a just household there's funny things you can share, jokes and all. So ask people to stay away from the watching the negative. I told you negative नहीं देखना because every time you see TV वहाँ पे कुछ ना कुछ negative आता रहता है. So that way, and emphasize that most people recover from COVID-19. So you have to emphasize the people that most of the people come. Abhi dekhiye, these are the examples of Siliguri. If 127 touchwood 127 patient अगर सिलीगुड़ी में recover करता है घर में रह के, that will be an example कि घर में रह के भी 127 patient ठीक हुआ है. Because one patient was admitted with renal transplant patient who was there for half an hour. They said, I'll not stay in the hospital, Dr. Bhutia. I'll go home. हमको घर में इलाज कीजिए. Now it's been 3 days. It's a post-renal transplant patient, which is of risk, a riskiest patient of the lot. क्योंकि post-renal transplant का immunosuppressed compromise होता है. He is taking treatment at home and he is doing good. अभी तक saturation was 94%. Today morning saturation is 99%. He is absolutely fine. So these are the good things you have to share. नहीं एक post-renal transplant patient can be treated at home just by video conferencing. Why not ये होगा. So that these are the positive things. उससे क्या होगा, एक social stigma भी ये होगा. You can give away all those things. So I don't want to go details in this thing. I'll be happy to share the questions if you have anything in your mind. जैन साहब आप या कहीं शुरू कर दीजिए. बॉक्स में 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, सर हम कंबाइन करके सबका क्वेश्चन आपको बोलना चाह रहे हैं. अच्छा सर ऐश्वर्या अभी आपको पूछेंगे क्वेश्चन सबके बिहाफ में, तो आप प्लीज आंसर करें. Very good evening, sir. Very good evening to all of you present here. पहला क्वेश्चन ये है कि सर कब हम लोग को आइसोलेट करना होता है और आइसोलेशन के बाद हमें कोविड-19 की टेस्टिंग करानी चाहिए. ये एक जनरल क्वेश्चन है सर, जो इसका आंसर सबको चाहिए. आइसोलेशन किस लिए करना. इफ यू हैव अ फीवर, if you have a fever, if you have a body ache, if you have a नाक ये आपका टेस्ट सेंसेशन जा रहा है, if you have a weakness, if you have a severely cough, after 5 days का बाद टेस्ट करना चाहिए. टेस्ट इसलिए करना चाहिए not for the treatment, for the isolation further आप आइसोलेशन कर सके. टेस्टिंग से क्या है, आपका कोविड का पूरा ट्रीटमेंट एकदम ये होगा नहीं. टेस्ट इज टू आइसोलेट योरसेल्फ. अब 5 दिन हुआ है, अब कोविड पॉजिटिव आएगा तो अनदर 14 डेज आप आइसोलेट करेंगे खुद को.
सो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, टेस्टिंग जरूरी है, टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग का साथ अब टेस्टिंग का बाद अगर पॉजिटिव आता है तो यू कैन आस्क योर पीपल कि whoever has come in contacts with you for these many days, so please you isolate yourself और आप खुद को आइसोलेट करो। मैं पॉजिटिव आया हूँ, मेरा कोई भी, जैसे अमिताभ बच्चन ने खुद बोल दिया आई एम पॉजिटिव, मेरा साथ 10 दिन का अंदर में अगर कोई संपर्क में आए हैं तो प्लीज यू आइसोलेट योरसेल्फ और आप अपने आप को टेस्टिंग कराओ या कुछ भी करो। सो दैट वे वॉलंटरीली अगर कोई बोलता है कि आप आइसोलेट करो, मैं पॉजिटिव हूँ, दैट इज अ गुड जेस्चर, छुपाना नहीं है। क्वेश्चन आया है अभी में मिस्टर विनीत करनानी का कि डॉक्टर आई एम टेकिंग जिंकोनिया 50, लिम्सी 500, ivermectin and methicobal as immune booster, and he says he is absolutely normal and has no symptoms, so will when should he continue the medicines? देखिए जिंक है, अभी ये बहुत जिंक हो गया, विटामिन सी हो गया, दिस आर इम्यून बूस्टर बिकॉज विटामिन सी से सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिंक से सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ाता है। So that way, if you have zinc and for a month, it's okay. And for vegetarian, they do have B12 deficiency होता है, B12 tablet वो 1 महीना तक ले सकते हैं। और अब ivermectin जो, तो ivermectin का तो सिंगल डोज होता है, कोई किसी जगह में 3 बार देता है। ivermectin का इम्यूनिटी के लिए नहीं है, ivermectin वायरल क्लियरेंस करता है। इन विट्रो देखा गया है कि विद सिंगल डोज ऑफ ivermectin इट जस्ट अ वर्म्स का दवा है। we have been using that molecule for the last 20 years। एक डिवॉर्मिंग दवा है। विद दैट ड्रग्स बांग्लादेश में दे आर ट्रीटेड मेनी पेशेंट, ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रीट किया है, देयर आर ट्रायल्स गोइंग ऑन, they are claiming that in vitro it is clearing 88.7% virus within 4 days। so ivermectin bhi people are trying, we are also using that, so there is no harm। Okay sir, thank you so much। क्वेश्चन है मिस्टर विजय अग्रवाल का कि अगर सैचुरेशन डिक्रीज होता है बिलो 94, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन? 94 होता है इमीडिएटली, अभी आइडियली क्या है 94 का नीचे जाता है और पल्स रेट 120 का ऊपर जाता है तो हॉस्पिटल दौड़ना बोलता है। और उससे बेहतर मैं हॉस्पिटल दौड़ने भी तो 4 घंटा 2 घंटा नष्ट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू अरेंज इन कार, यू हैव टू अरेंज अ हॉस्पिटल, यू विल रोम फ्रॉम दिस हॉस्पिटल टू दैट हॉस्पिटल। सो तब तक क्या होगा, पेशेंट का डैमेज होगा। बाय द टाइम क्या करें, वन शुड फाइंड आउट कि कहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं, स्टार्ट करो फोन करके इधर उधर, बट इमीडिएटली स्टार्ट ऑक्सीजन घर में, चाहे 5 घंटा बाद हॉस्पिटल मिले ना मिले, पर ऑक्सीजन शुरू कर दो उसको घर में। ऑक्सीजन 5 लीटर पर आवर के हिसाब से ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो, देन समबडी विल सर्च फॉर द हॉस्पिटल, गाड़ी वाड़ी जब कंफर्म हो जाएगा बेड तभी पेशेंट को वहां से ले जा सकता है, अगर उससे देखता है इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि इसमें एक इश्यू होता है हैप्पी हाइपोक्सिया। नॉर्मल सिचुएशन आप यहाँ से छांगू जाएंगे या तो बाबा धाम जाएंगे या थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पूरा ब्रेथलेस होगा, आपको लगेगा दम घट जाएगा, दैट काइंड ऑफ हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया होने से जैसे आप इफ यू आर गोइंग टू ले या हाई अल्टीट्यूड 12,000 में जाते हैं, आपको एक सफोकेटिंग फील होता है। पर ये बीमार ऐसा है, इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया बोलता है। इवन इफ योर सैचुरेशन 80% आप कुछ भी नहीं है, घूम रहा है, पर अचानक बेहोश होकर गिर जाएगा, आप बैठे बैठे सडन कोलैप्स हो गया। दैट इज व्हाई एवरीवन इज आस्किंग कि आप भी जब भी बुखार आता है, खांसी, आप यू चेक योर पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो, डोंट वेट, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया इज अ टर्म व्हिच इज कॉइन्ड फॉर कोविड-19। हैप्पी हाइपोक्सिया में आप हंस के जान गंवा देंगे, इसीलिए डोंट वेट कि अरे मेरा तो सैचुरेशन 90% है, मैं तो खुश हूं, मुझे कुछ नहीं है। दिस इज टोटली रॉन्ग है। आपको पेशेंट का जो हैप्पी हाइपोक्सिया में पेशेंट कुछ होगा ही नहीं, बट पेशेंट विल कोलैप्स इमीडिएटली। सो अरेंज फॉर ऑक्सीजन, स्टार्ट गिविंग ऑक्सीजन। कॉमन फ्लू में और कोविड-19 में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें? ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है। हाउ डू वी बिटवीन देम? नहीं देखिए, अभी का जो हैड इट बीन 6 months बैक, 1 year बैक, और सर्दी जुकाम होने से बोलता है बारिश बीच के हुआ है, ये से हुआ है, बट एनी नाउ अभी कोई भी अभी सिम्टम्स से क्या आता है तो यू ILI बोलता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सारी ILI बोल के जो वर्ड हुआ था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो अभी सर्दी जुकाम होने से भी सोचना पड़ेगा कोविड, अनलेस प्रूव अदरवाइज। बट कोविड का नॉर्मल फ्लू का जो ये होगा, उसमें बहुत आपको छींक आएगा, आपको हाथ जो स्नीजिंग बहुत होगा, स्नीजिंग बहुत हो, इसमें स्नीजिंग नहीं होता है, इसमें
हेलो, Yes, sir, एक बार background. कोविड में क्या होगा ना, आपका कोविड से आप देखें, कोविड में बोल रहा है कि आदमी का नाक से गंद चला गया है, टेस्ट चला गया है, नाक में जो नर्व एंडिंग्स होता है उसको वो पैरालाइज कर देता है, आपको एनेस्थेसिया कर देता है, तो आपका अंदर में कुछ भी जाता है, आपको छींक नहीं आएगा, हांची नहीं आएगा। आप इफ यू आर स्नीजिंग, पूरा आपको, और प्रोडक्टिव कफ है, पूरा बलगम निकल रहा है, कफ निकल रहा है, खांसते हैं, नाक से पानी गिर रहा है, रनी नोज है, यूजुअली कोविड नहीं होता है वो। और शुरू में हेडेक नहीं होगा, और टेम्परेचर इतना आएगा भी नहीं, कॉमन कोल्ड में, फ्लू में इतना फीवर आएगा भी नहीं। इसमें जैसे फीवर पूरा आ गया, 100 and 101 फीवर आया, हेडेक हो गया, और 102, 3 होने से फिर मलेरिया या डेंगू होगा। पर ये 99, 99.9, 100, 100.1 ऐसे आएगा, यू विल हैव अ हेडेक, सीवियर बॉडी एक, मैलेज, पूरा बदन दर्द और सीवियर वीकनेस होगा। पर इसमें कॉमन कोल्ड में आपको इतना होगा नहीं शुरू में, जस्ट नाक से, बट मेक श्योर आपका नाक से पानी गिर रहा है तो छींक 4-5 आ रहा है, दैट इज गुड साइन कि आपको कोविड होने का चांसेस बहुत कम है। बट अभी एनी कफ एंड कोल्ड फ्लू शुड बी ट्रीटेड इन द लाइन ऑफ कोविड अनलेस प्रूव अदरवाइज बोलता है। सबसे बेस्ट होगा, चाहे कॉमन फ्लू हो या व्हाटएवर, यू आइसोलेट योरसेल्फ, टेक पैरास्टेमल, वो स्टीम इनहेलेशन करो और हैव गुड न्यूट्रिशियस डाइट। क्या ये वायरस खाना से फैल सकता है क्या? जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं, बाहर से सब्जी लाते हैं, तो उससे क्या फैलता है ये बीमारी? नहीं, खाना से फैलने से, पका हुआ खाने से फैलता नहीं है, बट वो जो पैकेट है, पैकेट में अगर वो जो डिलीवरी बॉय का हाथ क्लीन नहीं है, हाथ में उसको छींक आया, सर्दी आया, वो हाथ से वो छींक कर लिया और वो पैकेट में पकड़ लिया, इफ यू टच दैट, उससे हो सकता है। और अनदर इज अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं उसके साथ, सो यू शुडंट हैव अ प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट विद डिलीवरी बॉय। तुरंत डिलीवरी किया उसको वहीं से, क्योंकि वन सो यू आर पेइंग, उसमें भी थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में, उसमें आपको बचना है, अदरवाइज डायरेक्ट फूड से आता नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे सर अगर हॉस्पिटल बेड्स का जो शॉर्टेज हो रहा है, तो हॉस्पिटल में अगर किसी को सीट प्रोक्योर करना इमरजेंसी है तो क्या किया जाए? वेंटिलेटर वाली सिचुएशन में अगर कोई हो, कोई किडनी पेशेंट हो या शुगर पेशेंट हो, तब तो क्या किया जाए सर? अभी देखिए मेन है तो अब डिपेंड, माने अब गवर्नमेंट का पास अरेंज 20% का की बेड हर हॉस्पिटल में रखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 4-5 कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल जहाँ पे 20% बेड रखा है, सब फुल है, सब फुल है। और ये नहीं है, माने कहीं पे बेड अवेलेबल नहीं है तो मुश्किल, अब तो उसका बाद तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओनली बेस्ट थिंग इज आप घर में ऑक्सीजनेटर रखो, ऑक्सीजन रखो, स्टार्ट गिविंग ऑक्सीजन। और जो वेंटिलेटर में चला जाता है वो पेशेंट आई हैव सीन कि अच्छा होके आना चांसेस बहुत कम है। और हॉस्पिटल में भी जिसको सिर्फ ऑक्सीजन दे के रखा है, जिसको सिर्फ बाईपैप में रखा है, जिसको सिर्फ हाई फ्लो ऑक्सीजन में रखा है, वो पेशेंट अच्छा होके घर जाता है। पर जिसको वेंटिलेटर में डाला गया है वो पेशेंट ठीक होके अभी तक बहुत ही कम पेशेंट गया है। इसीलिए कि आप अगर ऐसे नौबत आने का पहले आई टोल्ड यू कि आप अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं और इफ यू कैन अरेंज अ बाईपैप मशीन, अभी तो बहुत से लोग घर में सप्लाई भी कर रहे हैं बाईपैप अगर घर में लगाने शुरू कर देते हैं इस कैटेगरी पेशेंट को, और देन आई थिंक यू कैन सेव हिम और हर। सर मिस्टर प्रवीण का क्वेश्चन है, सर प्राइवेट में टेस्टिंग कहाँ होती है अभी? प्राइवेट का टेस्टिंग? यस सर। प्राइवेट का टेस्टिंग मुझे तो जहां तक मुझे आइडिया है, मेरा पेशेंट जो है वो दे आर डूइंग सुरक्षा में कर रहा है, और आनंद लोग आई थिंक दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे सुरक्षा आल्सो, दैट टू होम कलेक्शन ओनली। पेशेंट जाके नहीं कर रहा है, दे आर यू हैव टू, आपको एक होम कलेक्शन में वो लोग आएगा, यू हैव टू गिव वन रूम देना पड़ेगा, रूम में आएगा वो वहाँ पे पीपी पहनेगा, पीपी पहन के आपका पास आके कलेक्शन करेगा। सो मेक श्योर दैट यू द पर्सन कम्स विद, आएगा आके डायरेक्ट आपका रूम में नहीं आए, क्योंकि ही इज बीन रोमिंग दिस पेशेंट टू दैट पेशेंट, वही पेशेंट आके आपको बीमार देके चला जाएगा। उसको एक रूम देना है, वो रूम में वो अपना एक नया पीपी पहनेगा, फिर आपके पास आएगा, सैंपल लेगा, फिर वो पीपी वहाँ डिसइंफेक्ट करेगा, करके वो कहाँ पे डिस्कार्ड करना है, उसका क्या प्रोसेस है वो करेगा। कि कोई सीधा आ गया, ब्लड ले लिया, चला गया और आपको कोविड देके चला गया। सो कोविड का टेस्टिंग कराना है तो मेक श्योर द पर्सन वेयर्स अ पीपीई, और आपको एक रूम देना है उसको, पहले रूम देके वो पीपी पहनेगा, पीपी पहन के आके आपसे सैंपल लेगा, देन ओनली यू शुड अलाउ, अदरवाइज आप ऐसे नहीं करना। थैंक यू सर।
चाहिए एंड बच्चों की इम्यूनिटी हेलो, क्या करना चाहिए? हेलो सर, एम आई हाँ, ऑडिबल? यस, यस, या तो प्लीज। मैं बोल रही थी अगर बच्चों को कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या करना चाहिए एंड बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, कोविड का अभी तक का जो हिस्ट्री है, अब अभी तक का जो स्टैटिस्टिक है, 6 मंथ ओल्ड वायरस। कोविड अगर बच्चा से बड़ा को होता है घर में, बच्चों से बड़ा को होता है, तो दैट विल बी अ डिवास्टेटिंग, एकदम बड़ा बुजुर्ग जो घर में है, दादा जी, खराब हो जाता है पूरा। पर बड़ों से अगर बच्चा को होता है, बच्चा प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चा हैज गॉट एक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या इम्यूनिटी किसी कारण से बच्चा ऐसे, आई नो बिकॉज देयर आर फ्यू फैमिली आई हैव बीन ट्रीटिंग, घर में हस्बैंड वाइफ को हुआ है, बच्चा एकदम, बच्चा भी पॉजिटिव है, बच्चा खेल घूम रहा है, नथिंग इज देयर। सो क्या है कि बच्चों को बाय द वर्च्यू ऑफ गॉड या कुछ वट एवर इम्यूनिटी, दे आर गुड। बट इम्यूनिटी के लिए क्या है, बच्चों को थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट, दाल वगैरह हुआ, पनीर हुआ, छेना हुआ, और अब जिंक का जो सिरप भी आता है आजकल, जिंक का सिरप भी दे दीजिए। और उसको थोड़ा सा मास्क बच्चा को पहनते हैं तो मेक श्योर कि उसको ब्रीदिंग ठीक हो रहा है, क्योंकि बीच में बच्चा का भी सैचुरेशन देखते रहिए। बच्चा को वो बोलेगा नहीं कि उसका दम घुट रहा है कि नहीं, इसीलिए बच्चा को मास्क पहनाने का पहले मेक श्योर कि आप ये करना है। और मास्क भी आपको थोड़ा प्रॉपरली मास्क पहनना है, मास्क तो सही मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बीसीजी वैक्सीन है, ये किस उम्र के बच्चों को और किस उम्र के बड़ों को दिया जा सकता है? बीसीजी तो एट बर्थ है, एट बर्थ। जन्म हुआ और बीसीजी दे दिया, उसका बाद तो फ्लू बीसीजी वैक्सीन है? फ्लू 6 साल से 70-80 साल तक 6 साल से 70-80 साल के लोगों को दिया जा सकता है सर? दिया जा सकता है। ओके और सर। निमोनिया वैक्सीन ऑल डायबिटिक पेशेंट, ऑल हार्ट पेशेंट, ऑल किडनी पेशेंट, ऑल आफ्टर द एज ऑफ 50 निमोनिया का वैक्सीन, क्योंकि कोविड-19 वायरल फीवर है। कोविड-19 होने का 5 दिन का बाद अगर हॉस्पिटल स्टे होता है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एंड पेशेंट विल डाई ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया, नॉट बिकॉज ऑफ द वायरल निमोनिया। और अगर आप निमोनिया का वैक्सीन लिए हैं, फ्लू का वैक्सीन लिए हैं, तो उसको जो निमोनिया वैक्सीन है उससे 23 बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है और सीरियसनेस को पूरा कम कर देता है। सो निमोनिया का वैक्सीन मस्ट है आफ्टर द एज ऑफ 55, whoever is a diabetic hypertensive, so that complications ना हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और अगर वो सिम्टम्स दिखाए या फिर पॉजिटिव होए तो क्या करना चाहिए उसको उस टाइम पे? Pardon, sure. फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी इफ शी इज टेस्टेड पॉजिटिव क्या करना चाहिए और क्या उसको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? प्रेग्नेंट लेडी का नॉर्मल ये है, पर उनको उनके लिए जो दवा, जितना भी दवा है, जैसे फैविपिरिविर या ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो सेफली देते हैं प्रेगनेंसी में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैन बी गिवन बिकॉज वी यूज दिस मॉलिक्यूल फॉर रिमाटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के बाद के लिए वी हैव बीन यूजिंग दिस मॉलिक्यूल फॉर लास्ट 20 years। वो अगर एसएलई बोल के एक बीमार होता है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी में भी होता है, so SLE इवन प्रेगनेंसी में भी we continue SLE that hydroxychloroquine for 9 months। तो उससे बच्चों में just 1% दवा बच्चों में ट्रांसफर होता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी जाता है और प्लेसेंटा भी ये करता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक प्रॉब्लम होता है, प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी का बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बिकॉज उसका बाद देखा सडन ड्रॉप ऑफ इम्यूनिटी होता है एंड दे बिकम वेरी डेंजरस। सर जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कोविड हुआ पॉजिटिव, और उसको अब उसमें ना कोविड पॉजिटिव हुआ है प्रेग्नेंट लेडी, उसको 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, एक्सरे कर नहीं सकते हैं, सीटी स्कैन कर नहीं सकते हैं। सीटी स्कैन करने से अभी बोलता है कि कोविड का रिपोर्ट 30% जैसे फॉल्स नेगेटिव भी आ रहा है, बट सीटी स्कैन 97% सेंसिटिव है। तो आप कोविड टेस्ट कराया, रिपोर्ट आना 3 दिन लगता है, उसका पहले अगर सीटी स्कैन करते हैं तो सीटी स्कैन से पहले पता चलेगा आपका लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। सो वी आर डूइंग ऑल द पेशेंट एडमिटिंग इन द इमरजेंसी, सीटी स्कैन कर रहे हैं सबको, सो दैट कोविड पहले ही पता चल सकता है सीटी स्कैन से। बट प्रेग्नेंट लेडी में एक इश्यू है, बिकॉज ऑफ द बेबी इनसाइड में सीटी नहीं कर सकते हैं, एक्सरे नहीं कर सकते। बट अगर रिस्क बेनिफिट अगर देखें, माँ को बचाना है या बच्चा को बचाना है, तो उसमें तो आप वी कैन हम लोग इट्स अ ग्रे जोन, तो तब हम लोग सीटी भी कर लेते हैं, तो मदर को तो बचाना है किसी तरह से। ऐसे सिचुएशन है जहाँ माँ को बचाना है तो वी डू सीटी स्कैन भी कर लेते हैं, एक्सरे भी कर लेते हैं, पर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू द रिलेटिव कि ये इफेक्ट हो सकता है। सर एक
पर्सन अगर उसको कोविड हो चुका है, ही हैज कम नेगेटिव, वो वापस इन्फेक्ट हो सकता है? ऐसा कुछ है कि वापस नहीं होगा या वापस होगा? देखिए कोविड का, जब भी कोविड 14 डेज का अंदर में, 9 to 14 डेज का अंदर में एक कोविड का एक आईजीएम, 2 एंटीबॉडी होता है। एक आईजीएम, अभी जो एंटीबॉडी टेस्ट बोल के हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या देखता है? एक आईजीएम देखता है, आईजीजी देखता है। आईजीएम आया है तो यू आर पॉजिटिव, अभी का अक्यूट है। आईजीजी हो गया तो आपको ऑलरेडी यू आर इन्फेक्टेड, कि आपको यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। इसलिए गवर्नमेंट आर ट्राइंग कि सबको ये आईजीजी टेस्ट करे, सो दैट हम में से बहुत सारे लोग होगा ऑलरेडी कोविड हो चुका होगा, वी डोंट नो कि एक लो ग्रेड हो चुका होगा, हम लोग का आईजीजी फॉर्म भी हो गया होगा। पर अभी मैं कम से कम 5 या 6 पेशेंट को मैंने, कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो ठीक हो गया है, उसका मैंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया। उसमें से 5 पेशेंट में से 3 का आईजीजी फॉर्म हुआ, 2 का नहीं हुआ, सेम लेंथ ऑफ इलनेस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये एंटीबॉडी कितना दिन तक आपको सपोर्ट करेगा। कि क्या होता है, आपको एक इन्फेक्शन हो गया तो शुरू में एक आईजीएम के एंटीबॉडी आएगा, तो आईजीएम एंटीबॉडी 14 दिन का अंदर वो बॉडी से चला जाएगा, एंड 14 से 21 दिन का अंदर फिर आपको आईजीजी आएगा। दैट विल मेंटेन योर इम्यूनिटी। आपका सेल में मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल में वो बैठेगा, दैट विल स्टे इन योर मेमोरी सेल, वो मेमोरी करके बैठा रहेगा। इट्स काइंड ऑफ मेमोरी चिप। आईजीजी इज अ मेमोरी चिप। जब भी आप जैसे टाउन में घूम रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यूके गया, उस टाइप का वायरस है, दैट मेमोरी सेल विल आइडेंटिफाई, कि आईजीजी विल आइडेंटिफाई, अरे ये वायरस है, एंड द मेमोरी सेल विल प्रिवेंट दैट वायरस टू कम। तब वो आईजीजी आपका शरीर में कितना रहेगा अभी किसी को पता नहीं है। दैट्स व्हाई कोविड जब भी पेशेंट पॉजिटिव होता है, उसको 14 दिन से 21 दिन का अंदर आईजीजी देखा, फिर एवरी मंथ देखते गया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक देखते गया, देन वी विल कम टू कंक्लूजन। हाँ, अगर कोई कोविड होता है, कोविड होने के बाद अगर आईजीजी फॉर्म होता है, आईजीजी फॉर्म होने के बाद दैट आईजीजी ग्राफ विल रिमेन 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक इसका रहता है। ये 10 साल तक कुछ नहीं होगा। पर इफ आईजीजी लेवल देखिए 1 महीना का अंदर नीचे डाउन हो रहा है, डाउन होके 1 महीना का अंदर 0 हो गया, इसका मतलब फिर नाउ अगेन आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इट्स टू अर्ली टू से कि ये आईजीजी बॉडी में कितना दिन रहेगा। बट आईजीजी करने का बाद अगर आईजीजी लेवल बहुत ज्यादा होता है तो उनका शरीर से प्लाज्मा लेके अभी प्लाज्मा दे रहा है। प्लाज्मा थेरेपी, जिसको आईजीजी फॉर्म हुआ है शरीर में आफ्टर द कोविड इन्फेक्शन, उससे प्लाज्मा लेके आईजीजी दे रहा है, सो दैट उसका एंटीबॉडी फॉर्म हो। इसीलिए इट्स टू अर्ली टू से कि वो आईजीजी कितना दिन तक रहता है, री इन्फेक्शन होगा कि नहीं है, उसको फिर से होगा कि नहीं है। जैसे डेंगू में क्या है, डेंगू 1, 2, 3, 4, और डेंगू 1 अगर आपको एक बार हुआ है, आपका बॉडी में आईजीजी फॉर्म होता है डेंगू के अगेंस्ट पे। डेंगू 1 अगर आपको हुआ है, जिंदगी भर डेंगू 1 नहीं होगा, डेंगू 2 हो सकता है, बिकॉज डेंगू 1 का आईजीजी फॉर्म हो गया है, एंड द बॉडी विल रिकॉग्नाइज द डेंगू वायरस। इसीलिए नाउ कोविड-19 का वायरस का आईजीजी कितना दिन तक रहता है, इट्स टू अर्ली टू से। 1 साल तक स्टडी करने के बाद आफ्टर 1 ईयर वी कैन से नहीं। 100 पेशेंट का आईजीजी चेक कराया, उसमें से 80% पेशेंट का आईजीजी डाउन हुआ, 20% का आईजीजी मेंटेन हुआ। क्यों डाउन हुआ? व्हाई? मे बी अदर फैक्टर, इसको लो वायरल लोड हुआ था, या असिम्प्टोमेटिक पेशेंट का आईजीजी फॉर्म नहीं होता होगा। इसीलिए नाउ इवन वी दोज हु आर असिम्प्टोमेटिक, घूम रहा है टाउन में, बाजार में, सबको आईजीजी चेक करो कि ऑलरेडी हो चुका है। आई हैव वन पेशेंट, वो पेट्रोल पंप में काम करता है, उसका वन ऑफ द मैनेजर डाइड ऑफ कोविड। उसमें से एक लड़का था, उसका कोई सिम्टम्स ही नहीं, ना बुखार आया, ना कुछ आया, कुछ नहीं है। उसका ओनर ने हमको बोला, सर एक बार टेस्ट करा दीजिए। मैंने आईजीजी कराया उसको 21 दिन में, एंड आईजीजी उसका 8 आया, पॉजिटिव आया। देखो, तो ही वाज नॉट इन्फेक्टेड, बट ही इज नाउ इतना लकी का उसकी जिंदगी में अब आईजीजी अगर वो मेंटेन होता है सारा लाइफ, तो उसको कभी कोविड नहीं होगा। कोविड हुआ, बट इट वाज असिम्प्टोमेटिक, ही वाज नॉट अवेयर। आईजीजी कोविड हो के आईजीजी फॉर्म भी हो गया शरीर में। My next question is, लोग जानना चाह रहे हैं कि जब आफ्टर अ पर्सन इज टेस्टेड नेगेटिव, उसका सिम्टम्स रेगुलर हो सकता है, मतलब सर्दी है, खांसी है, अगर सर्दी कुछ भी है, तो कब तक स्मेल चला गया, टेस्ट नहीं आया वापस, सर वो कब तक परसिस्ट कर सकता है सर? These are all temporary. Smell और taste will come within आपको 2 हफ्ता के अंदर चला जाएगा। It is just a temporary वायरल से उसको पैरालाइज किया जाए, और नाक के अंदर में जो
ये होता है स्मेल जो सेंस करने वाला जो रिसेप्टर रहता है, टेस्ट का रिसेप्टर को पैरालाइज किया रहता है, बट दैट विल कम। एंड वन थिंग इज वेरी जस्ट आपको याद रखना है कि आपका अगर स्मेल चला जाता है या टेस्ट चला जाता है, दैट इज अ गुड साइन, यू आर हैविंग अ माइल्डर फॉर्म ऑफ कोविड। आपको कोविड का थोड़ा माइल्ड फॉर्म होगा, कि वो आपको दो कोविड, एक लंग्स को बहुत इफेक्ट करता है, एक नर्व को इफेक्ट करता है। कोविड से नर्व को इफेक्ट क्या करता है, वो टेस्ट चला जाता है और गन चला जाता है, एंड दैट इज टेम्पोररी। सो इफ समबडी इज हैविंग अ टेस्ट और नाक का गन चला रहा है, दैट मींस यू आर हैविंग अ माइल्डर फॉर्म ऑफ कोविड। यस, सॉरी, Very question. डॉक्टर भुटिया, हाँ जैन साहब, हाँ जैन साहब, ये फ्लू वैक्सीन चल सकते हैं इस एज में, लाइक आई एम 69 हाँ, 70, in your age is the best man you have to take, जैन साहब। तो आपको कहाँ तो फ्लू वैक्सीन घर में लेकर घर पे नहीं कैसे लें, मतलब ये ऑल राइट? कहीं भी यू गो टू न्योटिया या कोई भी केमिस्ट में जाइए, फ्लू शॉट ले लीजिए एक ठो। फ्लू वैक्सीन ना? हाँ, फ्लू वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन हाँ फ्लू घर में वैक्सीन, यस, आई गो टू नेगोटिया एंड टेक इट। हाँ हाँ, यहाँ वहाँ भी जाके ले सकते हैं आप, वहाँ भी जाके ले सकते हैं और खरीद के ले आया, घर में भी लगा सकते हैं। घर में रख सकते हैं? हाँ। रिगार्डिंग जिंकोनिया एंड लिम्सी 500 कितना ले दिन में? लिम्सी में एक वन जिंक वन इन होल डे। हाँ, विटामिन सी तो आप देखिए, विटामिन सी का सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी तो आपको क्या करना है कि विटामिन सी से पर डे one will do, but you can supplement with food also. अब even if you have one green chili, उसमें विटामिन सी बहुत है। ओके, नो लाइक वी आर टेकिंग कीवी एंड ऑल, कीवी खाते हैं, हल्दी दूध पीते हैं दिन में घर में, उससे तो लाइक वी फाइंड मच बेटर। पर ये जिंकोनियम चाहिए 2050 जिंकोनियम, जिंक टैबलेट भी खा सकते हैं दिन में एक करके, दिन में एक करके। ओके, Okay, thank you, Ravinder Nanda, for your question. Thank you, sir, for answering it. So my next question is, sir, ये Fabiflu और Remdesivir का क्या रोल है अभी? सर, ये एक तो मार्केट में मिल नहीं रहा, इसकी बहुत ज्यादा हवा फैल गई है कि यही मेडिसिन एक क्योर है अभी कोरोना का। सर, तो क्या करना चाहिए हम लोग को इस मेडिसिन के लिए? रखना चाहिए घर पे कि नहीं रखना चाहिए, कि क्या करना चाहिए सर? नहीं रखना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना है। फैबीफ्लू इज अ फैबीपेरिविर, फैबीपेरिविर इज अ पुराना ड्रग्स है। फैबीपेरिविर जो आरएनए पॉलीमरेज बोल के वायरस का जो जीनोम है, आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। दिस फैबीपेरिविर इज अ वेरी कॉमन ड्रग व्हिच जनरली जापान में यूज करता है। जापान में फ्लू बहुत खराब होता है, वहाँ का जापानीज फ्लू बोलता है, जापान में फ्लू बहुत होता है, इन्फ्लुएंजा बहुत खराब होता है वहाँ पे रूटीनली फैबीपेरिविर यूज करता है। एंड उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे तो इट इनहिबिट्स आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। इसका आरएनए पॉलीमरेज, इन्फ्लुएंजा वायरस का आरएनए पॉलीमरेज और ये कोविड-19 का आरएनए पॉलीमरेज सेम है, और ये भी आरएनए कोविड-19 का आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। दैट वे the manufacturer, the scientists are claiming कि 4th day में 88% वायरल क्लियरेंस हो रहा है with the favipiravir। और इंडिया में भी जैसे ड्रग कंट्रोल ने इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है कि इट इज इन अ 3rd फेज ट्रायल कि आप ये दवा चला सकते हैं, बट टेक अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, कि आप पेशेंट को, क्योंकि अब ट्रायल होगा 1 साल, फिर 3rd फेज 2 क्या हुआ, फेज 18 सेंटर में इसका फेज 3 ट्रायल हुआ था, इसका ट्रायल हुआ था 18 सेंटर में वर्ल्ड में। तो 2 सेंटर से फेज 3 ट्रायल का रिपोर्ट आया कि इट इज अ वेरी गुड ड्रग। तो टेकिंग दैट ट्रायल देखने के बाद इंडिया ने बोला कि इमरजेंसी ट्रायल के लिए, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस ड्रग कंट्रोल ने भी अप्रूवल दे दिया कि आप भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, एंड साइड बाय साइड मेक अ फेज 3 ट्रायल आल्सो। इसीलिए हुएवर इज टेकिंग, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं ऊपर में, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज टेकन, पेशेंट को बोला गया है कि आपको ये दवा दे रहे हैं। सो जैसे मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, आई विल सेंड दैट डेटा टू द गवर्नमेंट कि नहीं मैंने भी इतना यूज किया, पेशेंट अच्छा हुआ। तो दैट वे इंडिया में सब जो यूज कर रहा है, दैट विल गिव एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी 1 साल के अंदर या 6 महीना के अंदर, इट रियली वर्क्स। सो फैबीफ्लू जो है, फैबीपेरिविर जो है वो ओरल मेडिसिन है,
वो केमिस्ट पे मिल रहा है, बट यू नीड प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट, यू नीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना, आपको जो कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट चाहिए। और रेमडेसिविर जो है, रेमडेसिविर भी ड्रग कंट्रोल ने अप्रूवल दिया है, दैट टू ओनली फॉर द एडमिटेड पेशेंट, क्योंकि इंजेक्टेबल है, वो इंजेक्टेबल देना है, बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ऑलमोस्ट सेम है। इंटरनेट पे बहुत सारा काढ़ा का रेसिपी और स्टीम लेने और गार्गल करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? दिन भर गार्गल करने तो फायदा नहीं देगा, 5 बार 6 बार गार्गल कर रहा है, गार्गल करके निकल के जाने वाला ऐसे नहीं, बट आप गार्गल करते ही निकल जाएगा ऐसे नहीं। अब तो ये वायरस तो आंख से भी चला जा रहा है, तो आंख तो गार्गल कर नहीं पाएंगे, नाक से चला जाता है, आंख से चला जाता है। अब कुछ दिन में ऐसे बोला कि कान से भी जाएगा, तुम क्या करेंगे? कान का पर्दा जिसका होल है उसका वहां से भी जाएगा, ऐसे आ सकता है डेटा 1-2 दिन बाद। तो गार्गल इज अ नॉर्मल, आप गर्म पानी में नमक डाल के सुबह एक बार और शाम को बिफोर बेड एक बार कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू बेड आप स्टीम ले सकते हैं, एक बार स्टीम ले लिया बस हो गया। बट आप पूरा एकदम हिस्टेरिक होके दिन में सारा दिन वही ये करके सिर्फ फेस क्लीन होगा एक करते करते। गार्गल कितने दिन कंटिन्यू करनी चाहिए? गार्गल कितना दिन करने, आप नॉर्मली आप 9 डेज तक करने से हो जाएगा, 9 to 10 days। ओके सर। एक क्वेश्चन है, एक ओल्ड है, उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फरवरी 2020 में लिया था, क्या उन्हें रिपीट करना चाहिए अभी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में देना है उसको। सितंबर में लेना चाहिए उनको? सितंबर अक्टूबर में देना है। ओके सर। एंड सर एक क्वेश्चन है कि एक पूनम अग्रवाल ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लिया था पर फिर भी उसे कोविड हुआ, कैन यू सजेस्ट व्हाई? ना वो कोविड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तो ये नहीं है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज नॉट फॉर कोविड, माने कोविड प्रिवेंट करेगा ऐसा नहीं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने से क्या होगा, कोविड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वैक्सीन तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से तो कोविड प्रिवेंट नहीं होगा। बट देखा गया है कि देयर हैज बीन ट्रायल इन इसमें ब्राजील में 90,000 पेशेंट का ऊपर दे ट्राइड, 90,000 people have been tried with the this thing, ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वाज गिवन एंड कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम हुआ। एक स्टडी आया था रिसेंटली, ब्राजील में ट्राई किया, 90,000 पेशेंट को दिया गया एंड द कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वाज लेस अमंग दोज कैटेगरी ऑफ पेशेंट। ओके सर, सर एक क्वेश्चन है सर, अगर एक किडनी पेशेंट है सर, अगर वो पॉजिटिव हुए सर तो क्या किया जाए सर? किडनी पेशेंट पॉजिटिव हुआ तो सबसे बड़ी ये दीज आर दी रिस्की ग्रुप है, क्योंकि किडनी पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव दवा खाते हैं या इम्यूनिटी डाउन रहता है, ट्रांसप्लांट हो या सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज है, वो लोग का इम्यूनिटी कम होता है। वो लोग अगर कुछ बहुत खराब होता है तो बहुत ही खराब हो जाएगा। प्रिकॉशंस यही लेना है, वही सेम रूल, आइसोलेट करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना है, जब भी ऑक्सीजन डाउन होता है होने का पहले उनको ऑक्सीजन देके रखना है सो दैट वो डाउन ना हो। आई टोल्ड यू, गाड़ी ब्रेक फेल होने का पहले ब्रेक वेल चेक करना है, दैट इज वन। अनदर इज उनका जितना मेडिसिन है वो टाइमली देना है, शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्टली रखना है और न्यूट्रिशन में पूरा ध्यान देना है। ऐसे करने से एक आदमी डेडिकेटेडली काम करने से वो ठीक रहेगा। जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, इन लोगों को इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए क्या लेना चाहिए? डायबिटीज, हाइपरटेंशन को नंबर 1 दे हैव टू स्लीप, एकदम एडिक्वेट स्लीप चाहिए, 7 to 8 आवर्स सोना है नंबर 1। नंबर 2 हाउस होल्ड एक्टिविटीज जितना है घर का काम करना है, क्योंकि डायबिटीज अभी बाहर नहीं जा रहे हैं, देयर इज ऑलवेज चांसेस कि शुगर हाई हो जा रहा है, सो दे नीड टू डू हाउस होल्ड एक्टिविटीज, घर का काम करना है। अनदर इम्यूनिटी के लिए जैसे जिंक, विटामिन सी, ये सब तो हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा प्रोटीन लेना है, ज्यादा करके प्रोटीनियस डाइट लेना है और शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दे शुडंट मिस द मेडिसिन, ड्रग का मेडिसिन। उससे अगर आप इधर सब जिंक भी खा रहे हैं, कैल्शियम भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, विटामिन सी भी खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बट दैट इज वेरी बैड। Sir, I think there's one more question. निमोनिया वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या देना चाहिए 55 इयर्स के अबव वाले लोगों को? दोनों देना है या दोनों देना है? दोनों देना है, सेम डे पे नहीं, एक दिन 2 दिन छोड़ के दोनों देना है। इन्फ्लुएंजा भी देना है, निमोनिया वैक्सीन भी देना है। ठीक है सर।
सर हमारा क्वेश्चंस तो आज के लिए इतना ही था। अब आप क्या कंक्लूजन बताना चाहेंगे सब लोगों के लिए? सर थोड़ा सा कंक्लूजन। किसी का कोई है अपना, if they wanted to ask something? Does anyone want to ask? किसी को कुछ पूछना है? Please raise your hand. Yeah, Yeah, you can May I- message in the chat box. May I, ma'am? Yes, sir. Please. Uh, Good evening, Dr. Bhutia. Myself, Yeah, good Dr. evening. Gopal Kayan from Siliguri, Uttarayan. Yes, Sir, is COVID related to any blood group? Whether we have human beings have 8 blood groups like A positive, AB, B minus, O positive, and this and that. So, sir, whether sir, this infection, COVID is affecting the किसी particular blood group को सर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किसी blood group को कम इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ? एक स्टडी आया था चाइना से, बिकॉज क्योंकि चाइनीज स्टडी को वेदर वी शुड ऑथेंटिकेट और नॉट, बट चाइनीज का एक स्टडी आया था वन सिटी में जब बहुत पीक था, जब उस स्टडी की ए पॉजिटिव जो ग्रुप है, A1 पॉजिटिव, ए में भी सब ग्रुप है, A1 A2 है, A1 पॉजिटिव जिसको होता है, दे वो लोग का अगर होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है बोलते हैं। So anyone who has A1 positive blood group, A positive blood group, वो लोग का complications होता है, and there is some study एक निकला था, but उसको ज्यादातर कोई ये नहीं किया, उसको ज्यादातर फर्दर स्टडी या फर्दर उसको कंक्लूजन आया नहीं है, बट दी वुहान सिटी देयर वाज वन स्टडी कि A पॉजिटिव को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है, बट व्हाट इज द रिलेशन आई डोंट नो व्हाई ए विल हैव, बट वो लोग दे हैव जस्ट ऑब्जर्व कि ए वालों को ज्यादा होता है। अभी देयर आर कि जिसको थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसको ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज कमिंग ऑन, पर वो सब क्या है नहीं है अभी तो इट्स टू अर्ली टू से कि इसका असल में किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है। एंड देयर आर सेइंग कि एक एफ्लुएंट फैमिली को ज्यादा हो रहा है, या आप एकदम जो काम कर रहे हैं लेबर क्लास है या ये है लेबरर्स है या ये लोग को कम हो रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टडीज गोइंग ऑन, पर अभी टू अर्ली टू ऑथेंटिकेट एनी स्टडी। The last one, sir. Sir, sir, whether it's scientifically it's proved that the person who is doing a yoga or a pranayam, they are suffering lesser than the other people. Is there any role of? I told none, definitely, क्योंकि इसमें देखिए कोविड में सबसे पहले लंग्स को इफेक्ट होता है, आपका लंग्स तगड़ा होना चाहिए। यू हैव लंग इम्यूनिटी, आप बॉडी को पूरा इम्यून सिस्टम कर दिया, लंग्स बेकार है, आप दो सीढ़ी चढ़ते आपका दम फूल रहा है, दैट इज बैड। सो आपको लंग्स को तगड़ा रखना है। लंग्स तगड़ा रहने का यही है कि आप घर में साइकिलिंग करें या योगा प्राणायाम करें नाक से। सो लंग्स अगर आपका ठीक है तो दैट वे यू कैन फाइट द डिजीज, क्योंकि अल्टीमेटली लंग्स को इफेक्ट करता है। तो योगा प्राणायाम से डेफिनेटली आपका लंग्स से इम्यूनिटी बढ़ेगा। हाँ, इधर लंग्स का एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिंक भी खा रहे हैं, विटामिन भी खा रहे हैं, पर वॉशरूम में जाके एक सिगरेट पी रहे हैं, फिर बेकार हो गया। जीरो। विभा का एक क्वेश्चन है सर। थैंक यू सर। विभा जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। यस प्लीज विभा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सॉरी। हेलो। Yes. या मेरे को ये पूछना था कि कोई अगर मार्केट प्लेस में है वर्किंग एटमॉस्फेयर में, तो उनको अपना प्रोटेक्शन और कैसे प्रिकॉशंस रखना है? जैसे यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम है नया बाजार और इन सब में, तो कैसे वो लोग अपने को प्रोटेक्ट और प्रिकॉशन ले सकते हैं इसके लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मार्केट प्लेस में ना पहले दो डेज वेयर देयर, माने ओल्ड नॉर्मल और न्यू नॉर्मल। ओल्ड नॉर्मल में क्या था, हम लोग तय करते थे ठीक है शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो हम लोग डिसाइड नहीं करते थे, वी जस्ट गो वॉक इन, यहाँ खरीदा वहाँ खरीदा, जो देखा पसंद आया ट्रायल किया, 3-4 रूम, एक कोई भी शर्ट खरीदना है तो 2-3 बार ट्रायल किया, ये दोज वर द डेज। अभी क्या है ना, घर से सबसे पहले तय करना है हम कहाँ जा रहे हैं। से आई एम गोइंग टू मॉल में जा रहे हैं या सिटी सेंटर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मुझे क्या खरीदना है, पहले लिस्ट, टारगेट शॉप, अंदर एंटर हुआ, मेक श्योर आप 2 मास्क लेके जाएंगे, एक बाई चांस गीला हो गया तो यू कैन रिप्लेस, हाथ में एक सैनिटाइजर। आप अंदर गए, आप पहले तय करना है क्या क्यों जा रहे हैं, यू टारगेट द शॉप, वहां गया, मेक श्योर कि अंदर में जो आदमी है ही और शी इज वेयरिंग मास्क, जो कस्टमर्स है सब मास्क पहने हैं, भीड़ है तो वहां मत जाइए।
अगर भीड़ लगा हुआ है किसी दुकान में तो मत जाइए, यू बाय योर थिंग्स, ट्रायल रूम में बिल्कुल नहीं जाना है, ट्रायल करने के लिए नहीं जाना है, यू बाय द थिंग्स एंड इमीडिएटली कम बैक, और तो भी वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करके। तो इफ यू आर यूजिंग लिफ्ट, आपको वॉल का तरफ, लिफ्ट का वॉल का तरफ फेस टर्न करके खड़े होना है, आपको फेस टू फेस खड़े नहीं होना है, एंड ट्राई टू अवॉइड लिफ्ट। आप इसमें आप स्टेयरकेस यूज कीजिए, एंड इफ यू बाय चांस यू टच द रेलिंग, आपको हाथ साथ साथ में सैनिटाइज कर लीजिए, एंड दिस इज वन इशू। तो बहुत सा हम लोग तरस रहे थे कि सैलून कब खुलेगा, सैलून जाएंगे, सैलून में क्या करेंगे, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट द सैलून आल्सो, क्योंकि मार्केट प्लेसेस में सैलून में पीपल आर गोइंग। सैलून का भी यही है कि आपको आप वहां जाके, जैसे हम लोग बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वी यूज्ड टू वेट, गाना सुनते थे, वो नहीं करना है। कि आपको जाना है, यू मेक एन अपॉइंटमेंट, टाइम फिक्स करो, जाओ, बाल कटाओ, आओ। या आपको हेयर कलर कर रहे हैं तो हेयर कलर कराओ, एंड डोंट वेट कि वहीं वॉश करे, हेयर कलर करके घर में आके वॉश करना है, 45 मिनट्स वहां वेट नहीं करना है। अनदर इज वहां पे ब्लोअर यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां ब्लोअर यूज करने से एरोसोल जनरेट होगा। इफ समबडी कोई इन्फेक्टिव पेशेंट गया है तो हेयर का ब्लोअर से आपको पूरा चला जाएगा आपको अंदर में वायरस। तो हेयर ब्लोअर जो यूज करता है वो ब्लोअर उसको बोलना नहीं चलाने के लिए। तो कोई भी सर्विसेज हो रिलेटेड टू अपर लिप्स, यहाँ का फेस उतार के करने वाला, फेस मास्क उतार के करने वाला लेडीज लोग का हो या जेंट्स का जो काम है वो नहीं कराना है। अपर लिप का या लिप्स का काम यू शुडंट आस्क देम टू डू, ये इसको अवॉइड करना है। एंड मेक श्योर दे आर यूजिंग उसको जो सीजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से वो लोग धोए, या उसको जैसे साइडेक्स बोल के सॉल्यूशन है, साइडेक्स सॉल्यूशन में वो लोग रखा है। सो दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन ये पार्लर में, सैलून में। तो दुकान में तो यही है कि आपको वही है, सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना ही है। आई टोल्ड यू कि आपको मास्क, जैसे अभी मास्क का बात हो रहा है, जस्ट 2 days बैक 20th कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम फैमिली जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस इशू किया है कि आपको वेल्व वाला मास्क नहीं पहनना है। मास्क को लेके बहुत बात उठाए, एवरी टाइम देयर इज न्यू गाइडलाइंस कमिंग। वेल्व वाला मास्क तो डेफिनेटली देयर इज अ साइंटिफिक रीजन कि आपको नहीं पहनना है। मास्क पहनने का मतलब क्या है कि मैं दूसरा को भी इन्फेक्शन नहीं फैलाऊं और दूसरों से भी मुझे नहीं आए। ऐसे नहीं कि बिकॉज इफ आई एम अ पॉजिटिव पेशेंट, आई एम वेयरिंग मास्क, मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर। और वो जो वेल्व वाला मास्क है वो वन वे वेल्व है। वहां पे क्या होगा, इसलिए वेल्व लगाया है कि आपको ब्रीदिंग इजी हो, सफोकेटिंग फील ना हो। उससे क्या होगा, आप जब ब्लो करेंगे, सांस छोड़ेंगे, वो वेल्व खुल जाते हैं, वहां से हवा बाहर निकल जाता है। बट व्हेन यू आर, आप इनहेल कर रहे हैं वहां से, वो वेल्व वन वे वेल्व है। बट इफ यू आर कोविड पॉजिटिव और इफ यू आर सस्पेक्ट, आप अगर सस्पेक्टेड है या आप असिम्प्टोमेटिक है, तब भी व्हेन यू आर ब्रीदिंग, आप वो वेल्व से, वन वे वेल्व से जाके दूसरा को इफेक्ट कर रहे हैं। सो आप यू शुडंट वेयर दैट मास्क, N95 लिखा हुआ मास्क, जिसमें N95 लिख के जो एक वेल्व लगाया हुआ है वो यूज नहीं करना है। अब बाजार में जब भी N95 मास्क होता है, N95 मास्क के ऊपर NOOCH बोल के NOOCH लिखे, वहां एक कोड नंबर दिया है। वो आपको वेबसाइट में जाके देखिए, वो कोड नंबर ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। वो कोड नंबर अगर ऑथेंटिकेट है, देन ओनली यू बाय, क्योंकि अभी बहुत डुप्लीकेट मास्क N95 लिख के बाजार में बिक्री हो रहा है। सो दैट NOICH सर्टिफाइड विद कोड नंबर, दैट कोड नंबर आप गूगल में डाल दीजिए, ऑथेंटिकेशन आ जाता है, देन यू कैन बाय दोज N95 मास्क इवन इफ यू बाय। और बेस्ट वे इज यू कैन बाय घर का। यस, एनी क्वेश्चन रेज किया? यस Good evening, doctors. Mr. Mehta, Veterian Mehta from Uttarayan. If you don't mind, let us wait because somebody is already lined up with a question, please. हाँ सर, Yeah, Mr. Vishnu uncle, please speak. हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ सरकारी जो व्यवस्था है, इसमें कुछ बेड की जो समस्या आ रही थी, ये समस्या कुछ कम हुई है? ये जैसे न्यूटिया है, न्यूटिया में कुछ बेड कम थे, वो बेड बढ़ाए हैं, नहीं बढ़ाए हैं, ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? 20 बेड तो न्यूटिया में शुरू कर दिए हैं। हेलो,
हेलो, सुन रहे हैं आप? मुझे सुन रहे हैं? I think Dr. PD Bhutia got connected. Let me just wait for a moment for him to reconnect. I give the answer 20 बैट शुरू कर दिया नेबोटिया में। हेलो, Vishnu uncle, I think the doctor is not here. He has been disconnected. We are just calling him to see what has happened. ओके, थैंक यू। Yeah. जानती है कौन? बेड का कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं बढ़े तो और घर पे भी कैसे Doctor sir is back with us again. हेलो, Yes sir. सर वहां से ले लो खाना। Everybody kindly mute yourselves. Vishnu uncle, हाँ you can please मैं ask the question. हाँ मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जो कोविड पेशेंट जो भर्ती होने वाली कंडीशन में है, जो कि सुनने में आता कि बेड नहीं मिल रहे हैं, मान लो सरकारी है या प्राइवेट है, तो अभी लेटेस्ट क्या परिस्थिति है, जो कि बेड की कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इसके बारे में जानकारी चाह रहे थे। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes sir. Yes sir, you are. अच्छा बोलिए। हाँ हाँ कौन? हाँ, अच्छा मेहता साहब बोलिए। मेहता साहब आस्किंग, कौन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? Yes, sir. I was asking question. Somebody was before me, Mr. Mansur. He was asking about some beds availability in the hospitals. हाँ सर। हाँ हाँ मैं विष्णु गुप्ता बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए सर। मैं बोल रहा था कि जैसे भी जो थोड़े से कोविड के सीरियस पेशेंट जो हॉस्पिटल में भर्ती होने वाली कंडीशन में है, तो जैसे बीच में जो सुनते थे कि बेड नहीं मिल रहा है, बेड की क्राइसिस है, तो अभी सर अभी इस पोजीशन में जो सिलीगुड़ी की जो पोजीशन है, जो 100-190 केस डेली आ रहे हैं, तो इसमें देखा ही जा रहा है जैसे हमारे रिलेटिव में या हमारे जान पहचान में कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थोड़ा उस कंडीशन में कि होम क्वारंटाइन में उनका कंडीशन समझ नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, वो हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। तो उसमें कुछ इंक्वायरी जब करते हैं तो पता चलता है कि वो कम बेड है, बेड अभी जगह नहीं है। तो अभी लेटेस्ट इसकी कुछ मात्रा बढ़ी है क्या सर बेड की? ना नहीं बढ़ा, क्योंकि 20% बेड का जो नर्सिंग होम में जैसे ये न्यूटिया हो गया, आपका डॉक्टर सीपी शर्मा का, मेडी का, यह सब में जो दिया था 20% करके, सब में ये नहीं है, माने बेड अवेलेबल नहीं है। बहुत सा जगह में बेड तो अवेलेबल पर वो वर्किंग फोर्स भी नहीं है, बिकॉज
एक कोविड बहुत सीरियस पेशेंट के लिए दो तीन चीज चाहिए। एक ट्रेन नर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिविस्ट बोलता है, पूरा टाइम में वेंटिलेट करने वाला, पल्मोनोलॉजिस्ट जो लंग को केयर करने वाला, ये सब चाहिए। वो सब जगह में वो वर्क फोर्स नहीं है, क्योंकि वो नहीं होने की वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसे न्यूटिया में सेंट्रली एसी बोल के नहीं कर रहा था, बाद में 4th फ्लोर में वो लोग नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन सिस्टम किया, उसका बाद देन आई थिंक थोड़ा सा स्टार्ट किया गया, बट क्राइसिस इज देयर सर। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसे भी एक पेशेंट हमारा डिक्लेयर हुआ है जो कोविड है, उसका उम्र भी ज्यादा है, वो कैसे? अच्छा देखिए, कोविड डिक्लेयर हो गया और अगर कोई सिम्टम्स ज्यादा सीरियस नहीं है, सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, सीटी चेस्ट में कोई निमोनिक पैच नहीं है, या ग्रेड बहुत माइल्ड ग्रेड निमोनिया या मॉडरेट ग्रेड निमोनिया है, तो घर इज द बेस्ट। घर में इतना साइकोलॉजिकल अच्छा सुकून मिलेगा कि घर में आप ऑक्सीजन दे दीजिए, तुरंत ऑक्सीजन शुरू कर दीजिए उनको, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर ऐसा एजेड आदमी जाके अगर वेंटिलेटर में चला जाएगा वापस नहीं आएगा। ये ज्यादा है सर? बोल रहा डॉक्टर। हेलो, सैचुरेशन कितना है? सैचुरेशन हेलो, वेंटिलेटर वाली पोजीशन आ गई है। ऑक्सीजन सैचुरेशन वो तो 94, 93 और एज भी ज्यादा है उनका, 80 का एज है। हाँ, तब तो बहुत सीरियस है। अगर जाएगी, अगर वेंटिलेटर में दे दिया तो वापस नहीं आएगी। घर में तुरंत आप, ठीक है, कल आपको बेड मिलेगा, तुरंत घर में आप ये शुरू कर दीजिए, इनको बाईपैप और ये शुरू कर दीजिए, आपको ऑक्सीजन देना शुरू कर दीजिए, हाई फ्लो ऑक्सीजन, मास्क से ऑक्सीजन शुरू कर दीजिए। बोल ही रहा है मनोज। ओके सर, थैंक यू। हाई फ्लो आप हॉस्पिटल में बाद में घूमिए, हॉस्पिटल विनीत जी, विपिन जी, आप ना हॉस्पिटल इधर उधर बाद में आप खोजिए, बट स्टार्ट ऑक्सीजन थेरेपी इमीडिएटली। पूरा मास्क लगा के 5 लीटर में खोल के पूरा हाई फ्लो दे दीजिए, और उससे आपको अगर शुगर प्रेशर कुछ है ना, वो तो नहीं है सर, शुगर प्रेशर कुछ नहीं है तो आप चलाइए नहीं है, ये देखिए तो आप कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Yes. Hello. Yes. Good evening, doctor. There's a little query, regarding there is a chances of blood clotting also. Yes. The COVID patients. COVID patient में है। Should we take blood thinners? वो थोड़ा सा because I was one of my friends is there in London who is working in इसमें कोविड में ही काम करते हैं, they are also advising, और मैं तो routinely कर ही रहा हूँ, those are risk group, उसको blood thinner जैसे इकोस्प्रिन टैबलेट हुआ एटलीस्ट 14 दिन के लिए लेने के लिए। If there's no risk, other risk factor, कहीं पर अगर स्ट्रोक नहीं हुआ हो, कोई ब्लीडिंग डायथिसिस नहीं है, तो they can safely take इकोस्प्रिन 75 for 14 days, because ये कोविड का ब्लड क्लॉटिंग साथ भी रिलेशन, ब्लड क्लॉटिंग कर देता है पूरा। Because as a heart patient, normally clotting is a very big problem. हाँ, तो हार्ट पेशेंट के लिए एक चीज है ना, हार्ट पेशेंट लोग तो वैसे भी वो क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन खाते हैं, दैट वे हार्ट पेशेंट के लिए एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज जैसा है उसके लिए। Right. So if any heart patient who are on clopidogrel, aspirin या blood thinner, Debigatron कोई भी जो खाते हैं, तो that is a kind of blessings. So they can take on those who are risk group. Hello. Unmute कीजिए please. Hello. Hello. Yes, Hello. sir. Hello. There's no voice there. डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello. Yes, Hello. sir. Your voice is low. Yes, sir, but your voice is low, sir. अच्छा. Now. Yes, sir. Hello. Hello. Yes. Like डॉक्टर साहब अगर एक थिनर लेना, ब्लड थिनर लेना है, तो like what range it should be? Ecosprin 75 safe है, aspirin 75. I was recommended earlier Deplet 1A 150. There's a different type of
One is with aspirin, one is without aspirin. No, aspirin safe is aspirin, only aspirin 75. So I was recommended 150, A150, which I am continuing. Well, you continue that. But those who are first koi start kar rahe, so they can take 75 milligram. But otherwise, those who are already on clopidogrel aspirin combination, they can take that. They can continue that. That's a much way better for avoid clotting. हाँ, एकदम. And there's a lot of confusion about using what type of mask, because and up to what duration it should be used. Maybe once it is used and throw away, or it should be cleaned, or it should be washed, or it should be ironed, or it should be dried up in the sun. See, if you have a homemade clothes mask, that you can use, you can reuse that, wash and dry in the sun, and you make an iron and you can use next day. So you can make a 2 pair of that homemade clothes. That, but it has to be, it has to cover properly your nose, your chin. You need an adequate amount of 3-ply clothes. So 3-ply mask, you should properly cover your nose. सर आप म्यूट हो गए फिर से डॉक्टर साहब आप Can't hear. We can't hear you, Doctor Saab. But he has to unmute himself. अपने को unmute कर दीजिए ना. Dr. Bhutia, unmute कीजिए. Yeah, he's unmuted. Okay, he's unmuted now. Sir, please go ahead. Okay, Dr. Can you hear me now? Yeah. There's while using mask, there's some problems with the person who are using specs. The vaporization, if it is not properly stuck at the place, when you breathe, the evaporation comes on the specs, and it has to be cleaned again and again. That is the problem we are facing. We are too face in the hospital, because mask, specs, and on the top of that you have face shield also. That is उसके लिए एक बहुत अच्छा solution है. Once you wear mask, you buy a small you buy that that micropore, and यहाँ आपको यहाँ पे tightly fix कर दीजिए. Micropore लेके you wear a mask, and from there put a micropore and पूरा यहाँ पे attach कर दीजिए. Then specs को बाहर से ऐसे रखिए. There won't be any vaporization. Right. Otherwise, use of spec becomes very difficult. Yes, ऐसे कीजिए, एक भी वेपर नहीं आएगा आपको. Right. क्योंकि यहाँ से आपका एयर लीक होता है ना, so you just माइक्रोपोर्ट से पूरा उसको बंद कर दीजिए इसको. Right. Thank you very much, sir. And other masks like surgical masks, you can use and throw. Surgical masks तो use and throw कर सकते हैं, but normally you can mask homemade mask, and it's a reusable. But now one thing, you have to be sure that you should discard mask in a proper bin properly. Otherwise, people have a tendency to discard masks here and there. That itself creates a panic. Absolutely correct. Thank you very much, sir. The next question we have is, what is the vaccine name for influenza and pneumonia? The trade name is influenza. The recent, it's a quadrivalent vaccine. It's one is a quadri-flu, flu-quadri. Flu-quadri. And another is Vaxi-Flu. Vaxi-Flu. Okay, yes. Sir. Thank you so much, sir. Now we call Anup Goyal. He has a query. Mr. Anup Goyal. Mr. Anup Goyal. Hello. Yes. Mr. Anup Goyal, are you here with us? Sir, his question is, if someone is tested positive, how can the rest of the family members quarantine themselves along with a 6-month-old baby? Yes. See, if some. Yes, Anup Goyal, please go ahead. Yes, so like if someone is tested positive, what do we do to quarantine ourselves? And if we have a 6-month-old baby along with us, what are the safety measures that need to be taken? Like for the baby?
again there's a problem. Sir, please unmute yourself. Dr. Bhutia, Yes. Himself. you Yes. got muted. Yeah, yes, is again muted. So you're again muted, sir. It's okay. It's getting muted and unmuted Yeah. again and again. Yeah, it's Now it's fine now. Yes, sir, you're audible, sir. sir. Unmuted now. Yes, sir, your voice is audible, sir. Sir, your voice is not audible, sir. Yes, sir. Nami sir. Volume to be increased, please. There's some network problem, looks like. Yeah, Now. Yeah. Sir, you could answer in the chat box if there is a problem with the voice option. Hello. Yes, sir, you're audible, sir. Hello. Yes, sir, you're audible, sir. Time left. Hello. Yes, sir, you're audible. Am I audible now? Yes, sir, you're audible. Okay. See, question क्या था? Last question. Sir, my question is like, if someone is tested positive in my family, how do the rest of members quarantine themselves? And I have a 6-month-old baby along with me, and I'm breastfeeding. सबसे पहले है कि आप जो ये है जिसको पॉजिटिव है उसको तो एकदम अलग करना है, अपना अटैच बाथरूम, अपना सब टॉयलेटरीज अलग करना है, उसको घर रूम में 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन 10 लीटर पानी में 1 लीटर मिला के घर को सब वो रूम क्लीन करना है, और ही शुडंट कम आउट ऑफ द रूम, और रूम में वो 3-ply सर्जिकल मास्क लगा के रहेगा। और बाकी घर में जो बुजुर्ग है, जिसको शुगर है, जिसको प्रेशर है, उसको भी अलग कर दीजिए, उसको भी अलग रूम में शिफ्ट, अदर हाउस वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। और जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स है उसको प्रोफाइलेक्टिकली वो अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाता है, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ईसीजी में कोई क्यूटीसी प्रोलोंगेशन नहीं है तो फर्स्ट डे में 2 टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और हफ्ता में 1 करके 3 हफ्ता दिया जाता है। दोज हु आर वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट्स, और क्लोज कॉन्टेक्ट्स असिम्प्टोमेटिक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सिम्टम्स होता है तो टेस्ट करना है, बट द गाइडलाइंस वाज दैट आल्सो कि असिम्प्टोमेटिक। सो आपका आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दे हैव उसका थोड़ा इम्यूनिटी रहता है। मदर शुड वेयर अ मास्क, बेबी ब्रेस्ट फीडिंग जब करा रहे हैं तो, और बेबी की तो मास्क लगाना ये नहीं है, संभव नहीं, तो मदर शुड वेयर अ मास्क एंड हाथ को पूरा सैनिटाइज करना है एवरी टाइम, और को फ्लोर में क्रॉल नहीं करने देना है, अगर स्मॉल बेबी है क्रॉलिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करना है बेबी को फ्लोर में। और यू कैन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग बट यू हैव टू वेयर अ मास्क ऑल द टाइम। और जैसे बच्चा को प्यार व्यार करता है, बुजुर्ग हो, ये शुडंट बैठा के जो ये करता है बच्चा को किस चीज करता है वो सब नहीं करना बच्चों को। ओके, एंड डॉक्टर लाइक इज देयर एनी मेडिकेशन और एनीथिंग जो जैसे मुझे लेना है? आप तो वो जिंक ले लीजिए, आप अभी जिंक और जस्ट आप जिंक लेना शुरू कर दीजिए, और आप कैल्शियम विटामिन सी ले लीजिए। ओके ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और आप बहुत क्लोज एकदम एक ही रूम में कितना, व्हाट इज आपका क्या इज अ क्लोज, एक रूम अलग रूम है ना वो जो पॉजिटिव आया है? हाँ वो हॉस्पिटल में है डॉक्टर, लाइक उनको 5 days हो गए हैं, ही इज इन हॉस्पिटल। बट घर में किसी का सिम्टम्स नहीं है तो अभी? सिम्टम किसी का भी नहीं है डॉक्टर, मतलब सब लोग को फीवर हुआ था 15 days पहले, 1-2 जन को घर में, तो अभी तो नहीं है।
That means सबका ये हो गया होगा, आप लोग सबको लो ग्रेड कोविड हो गया होगा. Now you have developed immunity also, nothing to worry. But 21 days तक, now people say 14 days, 21 days. Now they are saying 28 दिन तक you have to be very careful. जो even 21 days to 14 से 21 दिन भी infectious रहता है कभी कभी. From 14 days to 21 days also at times infectious, but 21 days to 28 days is a convalescence period. उसमें infectious नहीं होता है, patient अगर positive ही रहता है तो. ओके. एंड डॉक्टर, अगर पेशेंट वेंटिलेटर में है तो फिर उनका क्या वो रहेगा? वेंटिलेटर से वापस आना बहुत ये है. अगर मैंने किसी तरह से अगर इम्यूनिटी अच्छा है, यंग है, फाइट कर सकता है तो आ सकता है. बट आई हैव सीन 80 years, डॉक्टर. 80 years difficult. 80. यस यस डॉक्टर. तब तो 80 तो एकदम आप नेगेटिव ही पकड़ के बैठिए. ओके. एंड डॉक्टर, जैसे जब हमने उनको एडमिट किया था तो उनका कोई सिम्टम नहीं था, मतलब 0 सिम्टम. उनका एक वुंड था, हम लोग उसके लिए उनको एडमिट किए थे कि वाज नॉट हैविंग फूड. तो फिर ताकि वो वहां पर जाएंगे, सलाइन वलाइन लेंगे तो शायद मतलब ऐसे स्ट्रेंथ रहेगा बोल के. एंड मतलब अब हमें वो हो रहा है कि उनको पॉजिटिव है. तो डॉक्टर, ऐसे घर में बाकी को भी फिर असिम्प्टोमेटिक उस टाइप से हो सकता है क्या? डॉक्टर, आपका आवाज नहीं आ रहा. हेलो. Sir, you may go ahead, sir. Yes, doctor. Hello. Yes, sir. Yes, doctor. So you, yes, sir. ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. अच्छा, कितना दिन हुआ ये टोटल? ये 5 days, डॉक्टर. 5 days हुआ है. आप लोग ऐसे ये रहिए. अब आफ्टर 14 days या 21 days का बाद यू कैन चेक योर एंटीबॉडी. सबका एंटीबॉडी अभी कोविड चेक नहीं करा के आप यू कैन चेक योर, अगर असिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं तो आफ्टर 21 days यू कैन चेक, ऑल फैमिली मेंबर कैन चेक योर एंटीबॉडी स्टेटस, सो दैट आपको पता चलेगा यू हैड आल्सो कोविड, लो ग्रेड कोविड हुआ था घर में. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में यंग को कोविड होता है, पता ही नहीं चलता है, ओल्ड एज सफर हो जाता है. ओल्डर एज में यंगर लोग से आके ना ओल्डर एज में थोड़ा सा इफेक्ट कर जाता है. ओल्डर एज दे विल शो द सिम्पटम्स मोर. ओके 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 डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर. Okay. Sir, we have a question कि sir एक person है, so his old age around 50, sir. So he had lung surgery 9 months back. Sir, can he take the vaccine, sir? डेफिनेटली. उसको हिस्ट्री वहां देखिए, वैक्सीन तो दिया होगा कि नहीं दिया है? सर वो चीज डिस्चार्ज समरी में देखिए, क्योंकि लंग सर्जरी का पहले निमोनिया वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दिया जाता है. बट इफ इट इज 9 months ओल्ड है तो यू निमोनिया. Sir, volume. Influenza vaccine, you give influenza vaccine. Yes, sir. Sir, आपका आवाज नहीं आ रहा है. डॉक्टर से बात कोई बात कर लेता ना सीरियसली. नहीं ठीक है, बात हो गया ना, ज्यादा पर्सनल था. Suman, are you with us? Suman? Suman? हेलो. Yes, sir. Sir, Am I audible? हाँ सर, अभी ऑडिबल है. सर अगर उनको वैक्सीन दिया गया है सर तो फिर उनको नहीं लेना है, और अगर वैक्सीन नहीं लिए तो उनको लेना है सर. हाँ लेना है, पर 9 months हो गया तो आप यू कैन रिपीट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. ओके सर. एंड सर निमोनिया वैक्सीन? निमोनिया जरूरत नहीं, निमोनिया तो एवरी 5 years देना होता है. ओके सर. ओके सर. सर, any questions? Any more? Anyone? I don't think we have any more questions. I want to ask one question. Yes. Yeah, Nishidi, please ask. So
want to ask if there is any heaviness in the voice. Like आवाज बहुत भारी है उनकी, तो is it a symptom of a COVID? No, it's a symptoms of hypothyroidism. नहीं, all of a sudden उनको थोड़ी अच्छा, hoarseness of voice है? नहीं सर, वैसा नहीं है. अच्छा, आवाज भारी ना, बहुत सा आई हैव सीन की बहुत सा पेशेंट बहुत जबरदस्त स्टीम लिया, स्टीम से या गार्गल बहुत गार्गल करने से भी वॉइस चेंज हो रहा है. स्टीम आवाज भारी होने के बाद लिया तो थोड़ा क्लैरिटी आता है, लेकिन अलग से एक वॉइस हो सकता है बिकॉज यू नो जस्ट थ्रोट इफेक्ट होने से भी थोड़ा सा वॉइस इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है. दैट कैन बी अ साइन ऑफ कोविड आल्सो, बिकॉज एनीथिंग कोविड कैन प्रेजेंट विद एनीथिंग, बिकॉज those classical symptoms are gone now, so every day there is new symptoms पूरा add हो रहा है, because genetically थोड़ा mutation हो रहा है शायद उसमें, so the new symptoms are coming up now. So thank you so much. Okay, sir, we have one question. What? घर आके क्या करना है बस दोस्त कोविड पेशेंट, क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ सर, हाँ. अच्छा, घर आके भी ना तो 28 दिन तक वो पूरा सावधान से रहना है. आई टोल्ड यू 14 डेज का बाद 14 to 21 डेज में कोविड का आईजीजी फॉर्म होता है, 21 to 28 डेज कन्वलेसेंस पीरियड है. 28 दिन तक दे हैव टू बी वेरी. अभी कुछ इटली से कुछ में खबर आया कि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट घर जाके भी खराब हुआ है. घर जाके दे बिकेम ब्रेथलेस ये सब. सो 28 दिन तक 28 डेज तक they have to be very careful. बाजार वजार जाना, मार्केट प्लेसेस में जाना, बिजनेस शुरू करना नहीं करना है. 28 डेज तक एटलीस्ट घर में ही रहना है. एंड मेंटेन योर न्यूट्रिशन, मेंटेन योर हाइड्रेशन, इम्यूनिटी बना के रखिए. घर में ही रहना है 28 दिन तक. सर एक क्वेश्चन और है कि सर हाउ इफेक्टिव इज कोरोनिल किट? कोरोनल किट तो वो तो अब देखिए आयुर्वेद दवा है, उसमें क्या क्या बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये है वो है, बहुत कुछ है बोला है. ये सब है, वो उसका कोई ये नहीं है. बिकॉज आई थिंक मैं कमेंट करना ठीक नहीं होगा. देयर सम कुछ होगा उसमें, बट आई डोंट नो क्या कैसे काम होता है. Sir, now should we end the meeting? Yeah, we should end the meeting now. I've got lots of patients waiting. People are calling me because और भी होगा सिलीगुड़ी में, अभी खोलते ही पता चलेगा. After COVID negative report, does that person need to be in strict? हाँ, COVID negative report आने का बाद भी strictly isolation में 28 दिन तक रहना है. This is one very important. Negative आ गया बोल के मजा करके कल पूरा डांस करना, ये करना नहीं है. Negative आने का बाद भी आपको is it right time to consult you? नहीं, अभी right time नहीं है. आशीष जी थोड़ा बाद में आप I can talk with you. कोई क्वेश्चन आ रहा है एक और कोई क्वेश्चन है? Vishaka, you can conclude the meeting now. Yes. Anyway, I think you all hope I could make you some थोड़ा सा knowledge share कर पाया. तो I suggest it's a new virus, so जितना knowledge मुझे अभी तक है मैंने share किया. I think hope कि the days will come कि we'll have more knowledge to share with you all. But for the time being, just थोड़ा moral high बना के रखना है and maintain social distancing and hygiene and mask पहनना जरूरी है. और थोड़ा सा energy level बना के रखना है so that negative energy हम में ना आए. And let's fight the disease, क्योंकि अभी with new normal habit का साथ हम लोग we can fight back the diseases. Thank you, sir. Vishaka, Anyway, thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Sir, thank you for your valuable. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable information and for giving us time. Your valuable time, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, thank you. It's pleasure. Thank You know, sir. at least awareness is बहुत important है अभी. Awareness छोड़ के तो कुछ नहीं. Sir, Vishaka wants to conclude the meeting. Yeah, sir. yeah. Please, Vishaka. Vishaka, Hello all. please. A very good afternoon to good evening. Actually, it's not even that now. But I would like to take this opportunity to thank Dr. P.D. Bhutia for taking his
precious time of his schedule and giving us very informative knowledge on this subject. He has covered all the topics regarding isolation, medications for both symptomatic, asymptomatic patients, hygiene essentials like using hydrochlorine in regular cleaning of, in our houses, and also how telemedicine through video conferencing has become, become a recent trend right now. So sir has also touched the very important subject of social media, how COVID is being treated as a social stigma, and how this happens every time when there is a new disease which has no cure. But as sir has asked us, we'll keep our moral high and energy boosted. And I would also like to thank our president, Nikita Agarwal, and secretary Aishwarya Agarwal Thank you. for organizing this Zoom session, and also Apurva Dalmia for, coordinating the sessions from the questions from everyone. Last but not the least, I would like to say that knowledge is power. And I would like to thank everyone who has attended today's Zoom session, and that we should pass on this knowledge to everyone we come in contact with. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Thank you Thank so you much, so sir, much, for your Shakul. valuable time. Thank you Thank you. so much Bye, for the bye. wonderful Bye. conclusion. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Papa, unmute kar. Papa, we can't hear you. Yeah, thank you for the good session, and thank Dr. Bhutia for his valuable time he has given, and he has given such a great knowledge. We should follow him, and I hope following him we can fight through this virus, corona. Thanks. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you, RK Jain uncle. Thank you so much for being with us. Wonderful indeed. I'd like to have Dr. Bhutia with us. He's so handsome, everyone. Keep smiling. Thank you, uncle. We're ending the session now. Thank you.